रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो सुमन। Sorry for the delay, guys, as ICI was having a yoga session also today. So again, sorry for this delay. Now we are starting with the session. दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता. A very beautiful morning and a very warm welcome to all of you on the webinar for CA final students. The theme for the webinar is One Step Forward with Expert Faculties. Thank you to each one of you for taking time out from your heavy schedule for being here with us. My name is Sumant Bhatia, and I am privileged of being here as a moderator of this wonderful session with a very contemporary topic of international taxation. Outside of a few rise and shine types, most of us don't consider Sunday morning as our favorite part of the day, especially if you stayed up late the night before working, worrying, or wondering. But if you learn how to start your morning right, you can reduce your stress and anxiety and significantly increase your chances of having a satisfying, productive day. Before starting, let me first introduce all the distinguished guests of this session. CA Anil Kumar Yadav, sir, Chairman of Jaipur branch of ICAI. CA Shailendra Agarwal, sir, guest speaker of this session. CA Naman Shrimal, sir, speaker of this session. Ms. Tanya, convener of this session. So before we begin, just a little housekeeping. If you have any queries during the presentation, kindly write them down in the comment box. All your questions will be answered at the end of this session. A recorded version of this webinar shall also be available for later viewing on YouTube. So now, I would like to request Ms. Tanya to please welcome our guest speaker of this session, CA Shailendra Agarwal, sir. A person of such magnitude will truly inspire all of us. Over to you, Tanya. Thank you, Suman. I would like to introduce our today's guest, CA Shailendra Agarwal, sir, a chartered accountant whose practice ranges from direct taxes, assessment, appellate matters, statutory and tax audit of various private limited companies and non-corporate assessee and handling various matters of GST. Sir is certified concurrent auditor and a forensic auditor. Sir has held office as Vice Chairman of Jaipur branch in the year 2015-16, Secretary for the Jaipur branch for the tenure of 2013 to 2015, as well as General Secretary of Knowledge Pool Society. He has also worked as Executive Member of Tax Consultant Association and Deputy Convener of Mansarovar CPE Study Circle of CIRC of ICAI. We are very lucky to have opportunity of learning from you and are very eager to learn what you have on this topic for us today. We welcome you, sir. Over to you, sir. Thank you very much, Tanya, for your kind words and my introduction. A very good morning to all the future chartered accountants, my dear lovely students. Students, today, first of all, I would like to thank Chairman Jaipur branch, CA Anil Kumar Yadav ji, who is my a very good friend, for inviting me for the today's session. And I also welcome Naman Shrimal, who is just like my younger brother and having expertise in international taxation. I really admire his expertise. And Suman, Vishnu, who all the guys who you are coordinating this today's seminar. Friends, आज जो मुझे यहाँ बुलाया गया है for words of wisdom, I was thinking what I have to share with the students of final. Might be some how to crack the exam, how to make your schedule, how to do work, and how to prepare examination. But I decided not to tell you about that because you all are very smart and you have all taken your guidance from your teachers, your seniors in your training during your tenure. I want to tell you a new thing which will help you in the your whole life. That is how to be happy with your working. Actually, the misconception with the children, we can say students, is that कि हम तभी खुश होते हैं जब हम दोस्तों के साथ होते हैं या मस्ती के मूड में होते हैं या जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं या पढ़ नहीं रहे होते हैं तभी हम रिलैक्स होते हैं. That is the misconception.
you have to find that what the thing you like, what the passion you have. अगर आपने ये दो चीज फाइंड आउट कर ली है तो आप हर चीज में वो इंजॉयमेंट फील करेंगे या हर काम में वो इंजॉयमेंट फील करेंगे. फॉर दैट कॉन्सेप्ट आई हैव टेकन अ जापानीज कॉन्सेप्ट. आपको इसका ओवरव्यू देने के लिए मैंने एक जापानीज कॉन्सेप्ट इकिगाई को आपके सामने रखना चाहता हूँ. दैट इज इकिगाई, IKIGAI. Everybody should have benefit from that. For that, I am showing you a PPT which I have prepared for you all. Are you able to see? Yes, sir. Yeah. Friends, हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, हमने उसका सिलेक्शन क्यों किया है, वेदर इट इज ए बर्डन बाय सोसाइटी, वेदर इट इज ए बर्डन ऑफ इट इज ए प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, और इट इज ए आवर चॉइस. वी हैव टू डिसाइड दैट. और वो आपके लिए, ये मैं टॉपिक फाइनेंस के स्टूडेंट हैं आप, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है क्योंकि यू आर बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्यू मंथ्स. यू आर नियर अबाउट टू complete your chartered accountancy course. That is ikigai. Ikigai is a concept, is a theory of Japan. The Japanese theory is ikigai, meaning है reason for being. हमारे होने का क्या अर्थ है, हमारे होने का क्या कारण है. तो everybody has to know what the reason of being. Friends, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे ये चार लॉजिक्स अगर हमारे क्लियर हैं, if we are clear about the working that we are doing, that we love it, हमें उसे करने में बहुत मजा आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें पता नहीं चलता कि उस काम को करते हुए कितना समय निकल गया. सेकंड वन इज शैलेंद्र भैया, आई थिंक पीपीटी नहीं दिख रही है आपकी. योर पीपीटी इज सर आपका स्लाइड एक ही जगह पे रुका हुआ है. ओके. नाउ No, sir, I think it's not. नहीं, को एक बार अनशेयर करके वापस फिर शेयर करना पड़ेगा. ओके. एक बार Yes, sir, now it's visible. या नाउ इट्स फाइन. या नाउ Yes, yes, sir. परफेक्ट. yeah, these four concept. First one is the work you love it. आपको उसे करने में बहुत अच्छा लगता है, उसमें कब समय निकल जाता है आपको पता नहीं चलता. The second thing is you are good at it. आप उसमें एक्सपर्टीज रखते हैं, आपको एक्सपोजर है उसमें और काम करने में आपको महारत हासिल है. You can say that you are the expert of that subject or that field. Third one is for what you can be paid. उसके लिए of course if you are doing something for society, if you are doing something for your employer or some for client, you have to be paid for that. And fourth one is the world needs it. उस काम की उस जो वर्क एक्सपर्टीज आपके पास है उसमें उसकी वर्ड में उसकी नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती. इफ योर वर्क, आपका काम अगर इन चार पॉइंट्स पे फुलफिल होता है, देन यू आर लिविंग इन अ हेवन, नॉट एन अर्थ. माइंड माय वर्ड्स. इफ अगर आपका काम इन चारों पॉइंट्स पे ओके है तो आप ये मान के चलिए कि आप एक स्वर्ग में रह रहे हैं. आपका जो काम है वो आपकी पूजा बन जाएगा. अगर हम आज के हमारे स्पीकर का बात करें, हम नमन शिमाल जी की बात करें, तो इन्होंने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है. इनका इकिगाई है इंटरनेशनल टैक्सेशन. इंटरनेशनल टैक्सेशन को ये दिल से चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं. ही इज गुड एट हिज सब्जेक्ट. he can be paid by the society and it is the need of the hour. So that is why I am giving example. That is ikigai. जापान में हर व्यक्ति इसके लिए कोर्सेज करता है, हर व्यक्ति को अपना इकिगाई मिलना इट नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट योर इकिगाई. यू हैव टू गिव योर टाइम फॉर टू फाइंड आउट योर इकिगाई. ये इतना आसान नहीं है कि आज हमने सोचने बैठे और हम आपका अपना इकिगाई या अपना पैशन और जिसके लिए चारों पॉइंट्स मैच करते हो और वो चीज हम आपको तुरंत निकाल के बता दें.
या कोई अपने खुद से वर्कआउट कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, और हो सकता है 1 साल लग जाए, बट आप उसको नहीं ढूंढ पाए। बट यू हैव टू बी प्रिपेयर माइंडसेट दैट आई हैव टू सर्च माय इकिगाई। अगर हम इन 4 पॉइंट्स को ब्रेक करते हैं, देन स्टूडेंट आस्क मी कि सर मैं उस काम को, मुझे अच्छा तो लगता है, मुझे मैं उससे लव भी करता हूँ और मैं उसमें अच्छा भी हूँ, but if it is not a need of our and people can't pay for that, it is just like a passion. It's just like if you like a biking, if you ride लॉन्ग ड्राइव पे जाना आपको अच्छा लगता है, कुकिंग आपको अच्छा लगता है, बट आपकी कुकिंग से किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कुक कर रहे हैं। नोबडी वांट्स टू पे यू फॉर योर कुकिंग। हाँ, अगर आप उसे अपना प्रोफेशन बनाते हैं देन इट्स अ डिफरेंट मैटर। बट नाउ अगर हम इन 2 पॉइंट्स को, अर्लियर स्लाइड्स के हमने 2 फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को लिया है, इफ यू लव इट एंड इफ यू आर गुड एट इट, इट्स जस्ट लाइक योर पैशन। इट कैन नॉट गिव यू मनी, इट इज नॉट डिमांडेड बाय द सोसाइटी, so it's only your profession. Now move forward. If we take second and third point, if you are good at work and you can be paid, but you don't love it and society doesn't need, that it can be a profession like somebody needs sometimes and you help him and that's it, and he paid you, but you don't love it and it is not regularly used by the society, not required by the society. It's just a service or profession. If we took third and fourth point, that is you can be paid for that and you and the society needs it, that means all vocational services, but you don't love it and you don't enjoy it, then it can be only a vocation. Understand, my friends? Now we merge that first and fourth point, that is you love it and society needs it. That is like a mission कि आप कोई संत महात्मा बन गए हैं, आप कोई किसी मिशन में जुड़ गए हैं, just like pollution control, just like tree plantation. You love it and society needs it, but you cannot be paid for that. So that's a mission only. It cannot you cannot survive with these 2 points in the society not so much longer. So what I want to say that everybody has to search, everybody has to work on his ikigai. These 4 points makes your ikigai, that what you want to do, that is you have to love it, you have to good on it, people has to pay for that, and it should be a need of the hour, it should be a need of the society. That would be your ikigai. I believe that every student, every person has to work, और जो भी इसे जितना जल्दी फाइंड आउट करेगा वो उतना ही जल्दी सक्सेसफुल होगा, ये मेरा दावा है। Because if you are expert, if you are feeling that I am good in audit, just like we took an example of CA, just you will become a chartered accountant in few months. अब हमें लगता है कि you are good in audit, but आपको किसी big firm में या कहीं आपको ऑप्शन मिलता है कि you are into taxation, हम आपको and you need it, you need the money, you have to support your family and you join it. But after a longer period, after a certain period, you that I'm not happy with this work because my core field, my interest is in audit. You cannot explore it. आपका जो ऑफिस का समय है वो अगर 8 घंटे है तो आपको वो लगेगा I'm spending 12 hours and you cannot excel in because you don't love it. You cannot excel it. अगर आपको वही ऑडिट सेगमेंट मिलता है आपको, तो you can excel in few years and you can be a top in few years. इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. That is upper circle is what you love and the left side circle is what you are good at. तो जो हमने अभी स्लाइड्स में समझा, अगर हम इनका इंटरसेक्शन देखते हैं तो that is your passion, just like a biking. If we go down, if we take a left side circle, what you are good at it and what you can be paid for that is your profession. That means you don't love it, that work, and people don't need regularly. That will be a occasional work and you can be a profession. Now take a right side circle, that is the word needs it, and upper circle is you love it. That's just like इसका जो intersection बनता है, that is a mission. Just like आप
किसी एनवायरनमेंट मिशन में लग गए हैं या प्लास्टिक कंजर्वेशन में लग गए हैं, तो इट्स लाइक ए मिशन दैट विल नॉट फुलफिल योर एम. अगर हम लोअर सर्किल और राइट साइड सर्किल को इंटरसेक्शन देखते हैं तो दैट वुड बी ए वोकेशन. बट अगर हम इन चारों का इंटरसेक्शन देखते हैं जहां पर हमारा ये चारों काम फुलफिल हो रहे हैं, दैट वुड बी योर इकिगाई. फ्रेंड्स, एवरीबडी हैज टू सर्च इकिगाई, और इस पे हमें मेहनत करनी चाहिए, चाहे समय कितना भी लगे. फॉर ए टाइम बिंग हम कोई काम करना चाहते हैं, हम काम करें, बट हमें अपना इकिगाई जरूर ढूंढना चाहिए कि हम किस काम में अच्छे हैं और किस काम को हम लॉन्गर रन में कर सकते हैं. तो योर डे विल बी ए amazing. Every day you will feel that I'm on holiday. Even after doing work, you will feel that I'm on holiday. So friends, that was the submission, that was the message which I want to convey to my dear lovely students. क्योंकि आज का समय everybody is in stress, whether they are businessmen, whether they are student, whether they are corporates, everybody is in stress. तो हमें being a chartered accountant, हमें चाहिए being a chartered accountant student, हम इतनी बड़ी strength में हैं, और हर अगर हम पॉजिटिवनेस एनवायरनमेंट में फैलाते हैं, पॉजिटिवनेस को लेकर आते हैं, तो इट विल स्प्रेड द वेव्स इन द सोसाइटी, इन द मार्केट. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द चार्टर सो का कुछ टेक्निकल इशू हुआ है. हाँ. Somebody can call him up. Yeah, I am calling, sir. Wait one second. Okay. Yeah, please go. Sir will be back in a second. Okay, perfect. Please reconnect. friends, that's I want to share with you that is the ikigai, एंड आपको इस पे वर्कआउट करना चाहिए. और जाते जाते आपसे एक कोटेशन शेयर करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद का. In a day when you don't come across any problems, you can be sure that you are traveling in a wrong path. अगर आपको डे टू डे रूटीन लाइफ में आपको बहुत स्मूथ है और यू आर नॉट फीलिंग एनी ट्रबल, तो आप समझ जाइए कि आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है. You will find every day a new problem, new issues, and you have to resolve it. You have to fight with this. Thank you very much. Thank you, Tanya. Thank you, Suman, and all the best, Naman, for your deliberation. Thank you so much, all of you. Yeah, it's Tanya, please. Yes, sir. Suman, begin. Thank you, sir. All your kind words will surely motivate the students and will carry on your legacy of values and beliefs. Before starting with our main discussion on international taxation, I would like to give a brief about the topics. Double taxation. Double taxation is the levying of tax by two or more jurisdictions on the same income. Now, question arises, how could double taxation liability be mitigated? Is there any solution to this problem? How the companies could take benefit of all this? Tax treaty. Many countries have entered into tax treaties, also called double tax agreements or DTAs, with other countries to avoid or mitigate double taxation. Now we have to see
whether such treaties covers a range of taxes or a particular tax, how many type of such treaties are there, whether tax treaties tend to reduce taxes of one treaty country for residents of the other treaty country or not. So pick up your Sunday morning crispy snacks and get ready to get solution to all these questions along with a deep understanding about the wonderful world of international taxation. Without any further ado, I would like to turn the time over to CA Naman Shrimal sir, who is an expert on international taxation. Over to you, sir. Thank you, Sumant. And I would like to, add 2 pointers to Shailendra Bhaiya's presentation. So yes, Ikigai, the Japanese way of living and happy life, and that's the book. Everybody should read it. It's a must read. Second is that towards the end, he mentioned a quote that if you are not facing a problem, then you are on a wrong path. We are obviously facing technical glitch, which is a big problem, and we are doing it, recording and then uploading it. So definitely we are traveling on a right path. Okay, and so let's travel. Let's start our journey on this Sunday. And many thanks to ICI Jaipur, Anil sir and Kuldeep to invite me over here. I'll just start my presentation and then let's keep rolling. Okay, slide is visible, guys? Yes, sir. Okay, perfect. So we are here on the second day. Yesterday we did transfer pricing and authority for advance ruling. Now we are here for international taxation, different other concepts like double taxation avoidance agreement, BEPS, GAR, those kind of mumbo jumbo words. Okay, so hope yesterday was fun and you enjoyed the creative presentation, and thanks for joining in now. I understand that this session is now been recorded and put on YouTube, so I request you to see this session before we go into the today's evening session, because this session will form base for today's evening session. Okay, and I would like to place thanks to my team, Vartika, Naman Malu, Kumkum, Ritesh, who have prepared this excellent presentation. And also last evening when basically we were facing an issue that my video was appearing on the right side and most of the photos which we had depicted were on the right side, that the team sprung up into action, specifically Vartika, and changed all the videos working towards the end. All the presentation and slides were changed so that it could be effectively presented. So thank you guys so much. And my dear hungry to learn students, a very good morning to all of you. Let's take this session forward. Ground rules are similar, which were there yesterday, but I'll just repeat because somebody might not have seen the yesterday's presentation. Why are we doing this session? I definitely love this subject and I want to make you fall in love with this subject. That is why we are doing this session. It's a 4-hour session which will be formation of base for your teaching material. And how are we going to do it? Via principle and concepts. So major idea would be concepts. In the 4-hour session, we will not be able to do a complete exams, questions and everything. So whole idea is to, have a principle and concepts, some questions so that keep you alive over here, and a lot of kahaniya, okay, a lot of stories. Why stories? Because stories, help you to understand the things. Stories help you to remember things for a long period. Yesterday we meet a lot of characters, Jethalal, ACP, Kasita Ram, many more people. And today also we will meet a lot of familiar characters. Obviously there is a limitation, and unfortunately because of being recorded session, you will not be able to type in. But whenever you see it, try to all those, put your answers into that, your comments into that, and any questions I will be happy to answer today in the evening. Focus on understanding the concept. Okay, main important thing, everything which is important is you have to understand the concept. Okay, and at the end result is that your selection of international taxation is your elective paper. So agar aap select karte hain aap international taxation as elective paper, I would believe that my mission, my purpose of having this
conversation with you has been achieved. And towards the end, obviously, caution, इस प्रस्तुति के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसी तरीके से आगे लेके चलिएगा. Okay? What's the agenda for today? What are we going to cover? Some basics of international taxation. What is double taxation relief? फिर टैक्स ट्रीटीज क्या होती हैं? मॉडल टैक्सेशन कन्वेंशन पे हम काफी टाइम स्पेंड करेंगे. ई कॉमर्स इक्वलाइजेशन लेवी स्पेसिफिकली, एंड देन एंटी गाइड अवॉइडेंस मेजर बेप्स एंड गार, ये भी हम काफी टाइम स्पेंड करेंगे. In this 2-hour session, I'll somewhere break between this model tax convention, okay, and then we'll take it forward 4, 5, 6 towards the in the second one. So let's start with some basics. Basics के लिए आपने अगर मेरा कल का प्रेजेंटेशन देखा होगा, I will take you away from the world of international taxation. Okay, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, what is international taxation? क्या इसका कोई स्पेसिफिक एक्ट है कि जैसे हमारा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्या ऐसा कोई एक्ट है वर्ल्ड इनकम टैक्स? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वी डोंट हैव नथिंग लाइक कि कोई ऐसा टोटलिटी में वर्ल्ड में टैक्स हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या चीज है? ये एक मिसनोमर वर्ड है इंटरनेशनल टैक्सेशन. इसकी जगह अगर उसको ढंग से समझे तो ये है टैक्सेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. जो भी ट्रांजैक्शंस एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जाते हैं, उनके बीच का अगर कोई ट्रांजैक्शन है और उस पे जो टैक्स लग रहा है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन है. ठीक है, दैट्स अ बेसिक आइडिया. इंटरनेशनल टैक्सेशन इज अ मिसनोमर. उसकी जगह वर्ड हम जरा बेटर समझ पाएंगे. इट इज टैक्सेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. ओके, अब अगले 10 मिनट के लिए आप इंटरनेशनल टैक्स की दुनिया से बाहर निकल जाइए. आप एक अपनी स्टूडेंट सीए भूल जाइए कि ये सीए स्टूडेंट है, भूल जाइए कि आप कॉमर्स पर्सन है, भूल जाइए कुछ भी, और एक बेसिक लॉजिकल एग्जांपल पे फोकस करिए. ये एक हमारे पास फोटो है और इस एग्जांपल को मैं पूरे प्रेजेंटेशन में वीव करूंगा. ओके, सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. ओके, यहाँ पे है हमारे मिस्टर राम और मिस्टर श्याम. मिस्टर राम के घर पे एक पेड़ है. देयर इज अ ट्री इन राम्स बैकयार्ड, एंड दिस ही पैशनेटली ग्रोज दैट ट्री पूरा, एंड लेट्स से इट्स अ मैंगो ट्री. ओके, वो बीज डालता है, वो उसमें पानी डालता है, फर्टिलाइजर डालता है, खाद डालता है, एंड द ट्रीज ग्रोज, एंड ही एंजॉयज द फ्रूट ऑफ दिस ट्री. He, whenever the mangoes come, he takes the mangoes, he enjoys the tree, ठीक है, and he takes care of the tree. ये ट्री बड़ा होता गया और धीरे धीरे मिस्टर श्याम के बैकयार्ड के अंदर चला गया. ओके, so it goes into Mr. Shyam's backyard. This tree has grown and goes into Mr. Shyam's backyard. अब Shyam is also a gentleman. What does Shyam do? Shyam also takes care of the tree. वो चिड़िया आती है तो ट्रीज से भगा देता है. He prunes the branches ताकि कोई खराब नहीं हो. He very well takes care of the tree. अब इस साल वापस से मैंगोज आते हैं, and mangoes are also on the side of Shyam and on the side of Ram, everywhere. Now आप मुझे ये बताइए, श्याम या राम, who will enjoy those mangoes? कौन करे? Who will enjoy the fruits? जो भी ये पेड़ पे फ्रूट्स आ रहे हैं, who will enjoy that? Who will claim a share to that? Okay, तो अपने दिमाग लगाइए, कौन क्लेम करेगा शेयर? Will Ram take it? Will Shyam take it? Okay, तो बेसिकली कुछ लोग बोलेंगे तो राम विल टेक. राम ने पूरी मेहनत करी है, उसने पेड़ उगाया है, उसने डे 1 से इसको बड़ा किया है, एंड राम शुड टेक ऑल द फ्रूट्स एंड एंजॉय. ओके, so then what will happen? Shyam will stop taking the care of the tree. वो ध्यान ही नहीं देगा ट्री पे. बोलेगा जाने दो, मुझे जब फ्रूट्स नहीं मिलने, मुझे जब कोई फायदा नहीं होना, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? I will not take care of the tree at all. And what will happen then? So overall fruits will reduce. Okay, पेड़ खराब हो जाएगा, हो सकता है जल जाए, हो सकता है चिड़िया सारे कैरी खा जाए, मैंगो ही नहीं आए. Okay, that could be a problem. Okay, what will happen if somebody says no, श्याम के बैकयार्ड में सारा का सारा ट्री है ना, सारा का सारा जो आ रहे हैं, सारी के सारे जो ब्रांचेस है वो तो श्याम के यहाँ पे हैं, तो श्याम should take all the fruits. So then what will happen? Ram will say okay, मेनू क्या?
ओके मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई विल स्टॉप वाटरिंग द प्लांट, मैं पानी नहीं दूंगा, जाने दो, मैं फर्टिलाइजर नहीं डालूंगा। एट द एंड व्हाट विल हैपन, फिर से ट्री खराब हो जाएगा, then nobody will be able to enjoy the fruits of it. So both are intelligent people, ये ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे वो, okay? They both will sit and decide an agreement, okay? They will say, okay, let's sit, हम लोग दोनों साथ में बैठ जाते हैं भाई, okay, and decide कर लेते हैं कि यार 50-50 तेरा, 30-50 मेरा, जो भी फ्रूट्स तेरे यहाँ पे गिरते हैं मुझे भी दे देना। राम बोलेगा मेरे यहाँ जो गिरते हैं वो तो मेरे ही है, पर तेरे यहाँ जो गिरते हैं क्योंकि मेरे पेड़ का इसमें योगदान है तो मुझे भी थोड़े से ना तू दे देना। श्याम बोलेगा ओके ठीक है। अब आप सोचो अगर ये अग्रीमेंट करने गए तो इस अग्रीमेंट में कौन ज्यादा शेयर मांगेगा, आपके हिसाब से किसका ज्यादा शेयर होना चाहिए? ये तो हमें क्लियर हो गया 100% दोनों का नहीं हो सकता कि 100% राम ले ले और 100% श्याम ले ले, दोनों के बीच में डिवीजन होगा। ये डिवीजन कैसे होगा? विल राम आस्क मोर और विल श्याम आस्क मोर? और इसका एक ही आंसर है, whoever is mightier, कौन स्ट्रांग है? राम हैज अ 6 पैक एब्स एंड श्याम मीकी सा है एकदम, श्याम नहीं है स्ट्रांग, तो बोलेगा कोई बात नहीं, ठीक है 80% राम यू एंजॉय, 20% गिव इट टू मी, ओके 20% मुझे दे दो, ओके। अगर श्याम स्ट्रांग है, श्याम इज दैट बॉडी बिल्डर एंड राम इज नॉट दैट स्ट्रांग, तो श्याम बोलेगा भैया मेरे यहाँ पे जितना गिरेगा ना 80% मैं रखूंगा, तू भी 20% ले लेना क्योंकि ऑब्वियसली तेरे बैठने में। बोथ आर जेंटलमैन, बोथ आर इंटेलिजेंट पीपल, लड़ नहीं रहे, ओके। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होगा और इसी तरीके से ये फ्रूट्स का डिवीजन होगा, ओके। इज दैट क्लियर विथ यू? ऐसा ही होना चाहिए। सपोज मैंगोज के साथ पत्ते भी गिरते हैं, ठीक है, सो बोथ कैन डिसाइड जरूरी नहीं जो मैंगोज का डिवीजन हो वही पत्तों का डिवीजन हो, पत्तों का डिवीजन ऐसा होता है जो तेरे साइड गिरे वो तेरे पत्ते, जो मेरे साइड गिरे वो मेरे पत्ते, ओके, क्योंकि मैं पत्तों को बेचूंगा या कुछ भी करूंगा या एनीथिंग, आई कैन यूज द ब्रांचेस आल्सो, सो देयर कुड बी डिफरेंट वेज, देयर कुड बी डिफरेंट थिंग्स एंड उसके में डिफरेंट नेम हो सकता है। एंड दिस माय फ्रेंड इज ऑल बट इंटरनेशनल टैक्सेशन। यही इंटरनेशनल टैक्सेशन है और कुछ नहीं है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। राम इज अ कंट्री ऑफ रेसिडेंस, श्याम इज कंट्री ऑफ सोर्स। राम के यहाँ से पेड़ उग रहा है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, उसने ये पेड़ बड़ा किया, ओके, एंड कंट्री ऑफ सोर्स में यहाँ गया, श्याम ने यहाँ पे उस पेड़ को संभाला। हमारे एग्जाम्पल में अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक की कंट्री ऑफ रेसिडेंस है यूएसए, वहां पे वो बड़ी हुई धीरे धीरे, वहीं पे संभली, सारा काम बड़ा हुआ। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया ने भी उसको आने दिया, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ ध्यान रखा, यहाँ पे उसके यूजर्स हैं, यहाँ भी उसका ध्यान रखा जा रहा है। वेयर विल द इनकम, दोज मैंगोज आर इनकम, दोज लीव्स आर इनकम, वेयर विल द इनकम गेट टैक्सेबल, ओके, वेयर विल द इनकम, वेल इट विल बी टैक्सेबल इन कंट्री ऑफ रेसिडेंस और वेल इट विल कंसिडर इट अ कंट्री ऑफ सोर्स, ओके। यही डिवीजन हमारे, यही अग्रीमेंट दोनों के बीच में होता है, जिसको बोलते हैं हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। क्योंकि अगर एक कंट्री ने पूरा का पूरा टैक्स लेने की कोशिश कर दी तो क्या होगा, वो पेड़ मर जाएगा। हमने देखा हमारे एग्जांपल में, अगर श्याम ने पूरा का पूरा लेना लेकर दिया तो राम विल नॉट सप्लीमेंट इट। अगर राम ने पूरा का पूरा पेड़ अपनी सारी चीजें मांग ली तो श्याम विल नॉट हेल्प इट एंड द बिजनेस विल डाई। तो दोनों बैठते हैं कि नहीं नहीं, बिजनेस को नहीं खत्म होना। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, डबल टैक्स किसका अवॉइड होता है? इस पेड़ के को बचाने के लिए हम डबल टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, ताकि यार यहाँ भी बराबर लगे और दोनों झगड़े नहीं और पेड़ सुरक्षित रहे। दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। एंड हु, किसके पास ज्यादा होगा? कोई भी आप ट्रीटी पढ़ेंगे, लॉजिकली देखिए कौन स्ट्रॉन्गर है। अगर राम स्ट्रॉन्गर है ना तो राम बोलेगा आई विल हैव द मैक्सिमम शेयर, और मैं आपको ट्रीटी के दौरान प्रूव करूंगा, ओके, कि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको ज्यादा शेयर मिलते हैं। कंपनी ऑफ सोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर इंडिया स्ट्रॉन्ग है यूएसए से, तो इंडिया बोलेगा मेरे को ज्यादा शेयर दो। और यही अगर आप लॉजिक समझेंगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, ओके। सो कीप दिस एग्जांपल इन योर माइंड, वी विल यूज दिस एग्जांपल सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग आवर सेशन, ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू द डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन रियलिटी में कैसा होता है? देयर इज मिस्टर चाय वाला हु इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, हिज इनकम फ्रॉम यूएस में चाय पिला पिला के हिज इनकम इज देयर 100 रुपीज, ओके। यहाँ पे टैक्स रेट है 30 रुपए। सबसे पहले यूएस में देखते 10% है। अगर टोटल इनकम पे 100 रुपए है तो उसका यूएस में सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, कंट्री ऑफ सोर्स, श्याम
शाम पे इसने बोला मैं तो 10 रुपए लूंगा, अभी ये दोनों को में कोई भी अवॉइडेंस अग्रीमेंट नहीं है, ओके, तो यहाँ पे 10 रुपए ले लिए इसने। कंट्री ऑफ रेसिडेंस राम, ओके, यहाँ पे बोला मेरे 30 रुपए, ये 100 रुपए पे तो तूने वहां पे इनकम कमाई है, बिकॉज रेसिडेंस है, तू मेरे यहाँ का पेड़ है, ओके, यहाँ पे भी 30 रुपए दे दे। यहाँ पे इसने 30 रुपए दिए, यहाँ पे 10 रुपए। मिस्टर चाय वाला बोला नो 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 नो, हाउ इट इज दैट, 40 रुपीज मेरे को देखने पड़ गए, जहाँ पे मुझे 30 रुपए देने थे या 10 रुपए देने थे, ये तो बहुत नुकसान हो गया। और इसको अवॉइड करने के लिए कंसेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ इज इंट्रोड्यूस। ये मिस्टर चाय वाले को 10 रुपए जो यहाँ पे पे किए इसकी क्रेडिट मिल जाएगी, और इंडिया में वो 10 रुपए ही 20 रुपए ही पे करेंगे, टोटल टैक्स 30 रुपए होगा। एवरीबॉडी इज हैप्पी, यूएस इज आल्सो हैप्पी कि उसको 10 रुपए मिल गया, इंडिया इज आल्सो हैप्पी कि उसको 20 रुपए मिल गया, चाय वाला इज आल्सो हैप्पी कि उसको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े। एंड दैट इज व्हाई डबल टैक्सेशन रिलीफ इज रिक्वायर्ड। अब हमारे चाय वाले जी यहाँ पे गए तो मिस्टर ट्रम्प को भी लगा कि यार मैं भी चाहता हूँ बिजनेस करता हूँ इंडिया में। No, why I am telling you ये बिजनेस, ये आपके मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बिजनेस इंडिया में किस तरीके से हो सकता है। दो तरीके से, विथ अ प्रेजेंस इन इंडिया एंड विदाउट प्रेजेंस इन इंडिया, दोनों की टैक्सेबिलिटी अलग होगी। विथ प्रेजेंस इन इंडिया क्या क्या चीज हो सकती है? एक, आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं मिस्टर ट्रम्प, यहाँ पे अपना एजेंट बैठा सकते हैं यहाँ पे, ओके। He could have a wholly owned subsidiary also. मिस्टर ट्रम्प ने यहाँ पे wholly owned subsidiary खोल दी, फ्रेंचाइजी ऑल्सो, देयर कुड बी मेनी मोर वे, बट ये 4 तरीके हमने सोचे। यहाँ पे क्या होगा, इंडिया का रोल ज्यादा होगा, बिकॉज इंडिया में ब्रांच ऑफिस है, इंडिया ने उनके लिए सड़कें बनाई है, ऑफिसेज बनाया है, इंडिया में यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, एंड देयरफॉर इंडिया विल आस्क मोर टैक्स इनटू दैट विद प्रेजेंस इन इंडिया। और ये थोड़े से 10-20 साल पहले का सिनेरियो था, जब अगर मुझे ये सेशन देना पड़ता तो मुझे उस जगह जाना पड़ता, आप लोगों को भी आना पड़ता, लेकिन आप अपने घर में बैठे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी अपने घर में बैठे बैठे आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो नाउ विदाउट प्रेजेंस इन इंडिया फोन के द्वारा भी काम हो सकता है, ओके। एंड व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस कैन बी डन विदाउट प्रेजेंस इन इंडिया? आप फोन पे आप ऑर्डर ले लीजिए, ऑनलाइन बिजनेस, ओके, ऑनलाइन बिजनेस आप आराम से कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सब विदाउट, इसके लिए इंडिया की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होना जरूरी नहीं है। सो इंडिया विल से ओके आई विल हैव अ लेसर शेयर, द कंट्री ऑफ सोर्स will say okay I will have a lesser share and a country of residence will get higher share because maximum functions वहां पे हो रहे हैं। Remember कल हमने पढ़ा था function asset risk, वही ये चीज है, maximum functions वहां हो रहे हैं। तो business in India and business in, तो यहाँ पे वो बोलेगा without presence in India मुझे कम शेयर दे दो, यहाँ पे मेरा प्रेजेंस ज्यादा है मुझे ज्यादा शेयर दे दो। ये एक बेसिक्स में क्रिएट करना चाहता था फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल इंटरनेशनल टैक्सेशन। बेसिक्स में सेक्शन 5, 6, 9 भी है, जो आई थिंक आपको नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में धीरज भैया लेंगे कल या परसों जब भी उनका सेशन है, इसलिए मैं इस पर डेवलप ऑन नहीं करूंगा। ये बेसिकली अगर मैं अपने एग्जांपल में दूं कंट्री ऑफ राम एंड कंट्री ऑफ श्याम, तो राम बोल रहा है कि मेरी कंट्री में मैं मेरा टैक्स कोड जब लिख रहा हूँ ना, ओके, तो मैं कैसे टैक्स करूंगा ये बता रहा है कि मेरे लिए तो पूरी मेरे रेसिडेंट का पूरा टैक्सेशन है, मैं तो मेरे रेसिडेंट को पूरा टैक्स करूंगा मेरे टैक्स के अंदर। इसने अभी तक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में नहीं गया, और ये आप आगे पढ़ेंगे इसको। सो आई एम स्किपिंग दिस, हम सीधे डबल टैक्सेशन रिलीफ में जाएंगे, ओके। हमने देखा रिलीफ मिलना जरूरी है, यूएसए में 10 रुपए की आपने टैक्स पे किया तो यूएसए में रिलीफ मिल जाएगी। व्हाई देयर इज अ फोटो ऑफ कैशबैक ओवर हियर। कैशबैक क्यों है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट समझ लो डबल टैक्सेशन रिलीफ का, जितना आपने टैक्स दिया है ना उससे ज्यादा कभी टैक्स नहीं मिल सकता। कैशबैक भी जितना हमने पे करते हैं उससे ज्यादा कभी कैशबैक मिलता है क्या? कि 100 रुपए पे कर दिए और 150 का कैशबैक, कभी किसी जमाने में हुआ करता था जब नए नए सब आए थे ये, पर आज के रोज में 100 रुपए दोगे तो 100 से ज्यादा कैशबैक नहीं मिल सकता मैक्सिमम। डबल टैक्सेशन का एक ही प्रिंसिपल याद रख लो, अगर आपको एक ही चीज याद रखनी है तो पूरे अगले डबल टैक्सेशन के अंदर, कि जितना आपने पे किया ना उससे ज्यादा कभी वापस नहीं आ सकता कैशबैक, ओके। कैशबैक, डबल टैक्सेशन इज लाइक अ कैशबैक रिलीफ। हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ रिलीफ 1991 एंड सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कहां से मिलती है? सेक्शन 90 एंड 90A बोलता है जहां पे इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, या तो बिटवीन 2 गवर्नमेंट के बीच में है तो 90 आते हैं, मैक्सिमम यही होते हैं। 90A बिटवीन स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? जैसे हांगकांग, इट इज नॉट अ कंट्री क्योंकि चाइना के कंट्रोल में आती है, बट ये स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक टाइपाई, ओके। तो वो भी सारी इनके बीच में जो है वो की सारी स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी मैक्सिमम वी हैव अंडर सेक्शन 90 अग्रीमेंट है, अराउंड 100 के आसपास अग्रीमेंट है इंडिया के, ओके। और अगर इंडिया का अग्रीमेंट नहीं है किसी के साथ तो भी इंडिया बोलता है कि मैं आपको टैक्सेशन का रिलीफ दे दूंगा, वी आर वेरी गुड पीपल। तो अंडर सेक्शन 90
91 अंडर सेक्शन 91 ओके हमें वो रिलीफ मिलती है. सो 90 में बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, 90A में बिटवीन स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस एंड 91 में अगर किसी के साथ हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं. 91 बायलैटरल रिलीफ क्या बोलता है, किसको पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है दूसरी गवर्नमेंट के पास जाके कर लेने का. किसी किसी कंट्रीज में जैसे यूके वगैरह ये पावर पार्लियामेंट के पास ही होती है. यहाँ पे हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट कर दी गई है, आप जाके साइन कर लीजिए, आपको पार्लियामेंट में इसका पार्ट नहीं बनाना. ओके व्हाट, उससे क्या होगा, क्यों बनाएंगे ये, ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी इनकम टैक्स दोनों कंट्री में पे किया हुआ है उसके रिलीफ दे देंगे. टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, हमने देखा था ना कि अगर दोनों कंट्री में से कोई क्रेडिट नहीं देता तो वो पेड़ सूख जाता है. ओके कोई ध्यान नहीं देता उस पेड़ का. सो टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, दोनों कंट्री टैक्स बेनिफिट देगी तभी म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ेंगे. अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ये तो आ ही गया है. एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्विट्जरलैंड में किसने कितना खाता है उसका एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यूज होता है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनकम टैक्स और इवेजन ऑफ अवॉइडेंस, अवॉइडेंस करना हो हमें तभी इन्वेस्टिगेट करेंगे तब इन्फॉर्मेशन आएगी. ओके एंड जब इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके बाद रिकवरी भी करेंगे इनकम टैक्स. तो ये बेसिक पर्पस है सेक्शन 91 का बायलैटरल रिलीफ. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक सेक्शन 92 आईटी एक्ट वर्सेस डीटीएए सेक्शन 90 ब्रैकेट में 2. ये बोलता है कि जो भी इनकम टैक्स एक्ट वर्सेस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो भी बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए वो क्लेम कर सकता है. जैसे राम अपने जब इनकम टैक्स एक्ट लिखेगा तो वो बोलेगा कि मेरा रेसिडेंट है कहीं भी फल दे रहा हो मेरे यहीं पे मैं उसके मैंगोज एंजॉय करूंगा. लेकिन क्योंकि वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर लेता है शाम के साथ में कि नहीं यार 20% फल तू ले ले 80 मुझे दे देना. So whichever is beneficial to the paid SSC, okay, whichever is beneficial to the SSC, वो लग जाएगा 20% शाम ले जाएगा 80% ले जाएगा. So that's the whole idea. So for a non-resident who is earning income in India, उसके लिए कैसे एप्लीकेबल होता है. Let's say हमारा IT एक्ट में सेक्शन 115 में बोलता है कि रॉयल्टी तो non-resident who is earning income in India 10% टैक्सेबल है और उस कंट्री के साथ जो DTAA है वो बोलता है 15%. तो 10% हमको ज्यादा बेनिफिशियल है, हम पे ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, हमको ये रेट एप्लीकेबल हो जाएगी. फॉर अ रेसिडेंट अर्निंग इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एक रेसिडेंट है हमारा, रेसिडेंट के ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है. हमारा आईटी एक्ट बोलता है ग्लोबल इनकम पूरी दुनिया में तुम कहीं भी कमा रहे हो ना, दिस ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया. और डीटीएए जो उस कंट्री के साथ हमने कर लिया ओके वो ये बोलता है कि नहीं नहीं ये वाली जो पर्टिकुलर इनकम है ना, लेट्स से दिस इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल ओनली इन दैट फॉरेन कंट्री, only in that foreign country, okay, then this DTAA के अकॉर्डिंगली इंडिया में वो टैक्सेबल नहीं होगी. तो एक साइड एंगल तब देखिए जब नॉन रेसिडेंट इंडिया से कमा रहा हो तब एप्लीकेबिलिटी देखिए, एक साइड जब देखिए जब इंडिया का रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से कमा रहा हो, whichever is more beneficial that would be applicable. Okay. I hope it is clear. 92A ओके 92A गार वर्सेस डीटीएए ये बोलता है कि अगर गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो कि हमारा लास्ट पार्ट है आज के दिन का, अगर वो एप्लीकेबल हो जाता है बिकॉज इट्स एन एंटी अवॉइडेंस रूल, तो इंडिया ने रूल बना दिया कि नहीं डीटीएए का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपके पास गार एप्लीकेबल है. ठीक है, तो ये भी एक रूल हमें ध्यान रखना है कि अगर गार एप्लीकेबल है डीटीएए का बेनिफिट नहीं मिलेगा एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट. सेक्शन 93 मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन डीटीएए. अगर ये बता दिया कि हमारे को अगर कोई टर्म यूज हो रहा है डीटीएए के अंदर तो कैसे उसको हम पढ़ेंगे. तो अगर डीटीएए के अंदर ही वो टर्म की डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट डज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मीन, ये वहां बता रखा है, तो हमारा एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 90 क्या बोलता है कि डीटीएए से ही आप उस टर्म्स को समझो. डीटीएए में डेफिनेशन नहीं दे रखी तो वही एक्सप्लेनेशन 4 हमको बोलता है कि नहीं नहीं डीटीएए में नहीं दे रखी तो आप हमारा एक्ट में से समझ लो भाई. ठीक है, कि एक्सप्लेनेशन 4 भी ये बोलता है. एंड ये सब सेक्शन 93 है वो क्या बोलता है कि डीटीएए में भी नहीं दे रखा, एक्ट में भी नहीं दे रखा, तो भैया नोटिफिकेशन अगर कोई गवर्नमेंट ने कर रखा है ना तो उससे आप पढ़ लो. सो दैट्स द वे यू हैव टू रीड इट. पहला डीटीएए नहीं दे रखा क्योंकि डीटीएए इज अ अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, सॉवरेन कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट है, ये मान्य रखना पड़ेगा, सबसे सर्वोच्च डीटीएए है. ओके, डीटीएए के ऊपर कुछ भी नहीं है. डीटीएए नहीं है एप्लीकेबल तो एक्ट. ओके, डीटीएए और एक्ट एप्लीकेबल नहीं है
सो नोटिफिकेशन। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन कब से इफेक्ट होगा? इंडिया बोलती है जब से DDAA कम इनटू फोर्स। और ये आज के रोज का इंटरनेशनल टैक्स का, अगर मैं आपको बोलेंगे स्लाइड में कितना इंपॉर्टेंस क्या है, ये आज के रोज का सबसे हॉट टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन आई एम टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, बट आज के रोज सबसे हॉट टॉपिक है कि टर्म्स कौन से एप्लीकेबल होंगे। ओके, नाउ वी गो टू टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। ओके, अब मैं किसी और के रेसिडेंट, कोई और रेसिडेंट को, राम और श्याम मान लीजिए, श्याम बोल रहे हैं राम को कि मैं तुम्हारे यहाँ के जो घर के लोग हैं ना टैक्स रेसिडेंट, उनको मैं ये बेनिफिट दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे कैसे मालूम वो तुम्हारे घर के लोग हैं? ओके, मैं सबको तो दुनिया में से, तुम्हारे घर में शत्रुघ्न आ जाएगा बाहर से, ओके, तुम्हारे घर में भरत आ जाएगा, वो नहीं रहता तुम्हारे घर में, ओके, मैं उसको नहीं बेनिफिट दूंगा ये। ओके, कैसे मानूंगा? बोले राशन कार्ड दिखा दो। ये राशन कार्ड दिखा दो। वैसे ही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ये बोलता है कि भैया तुम उस देश के रहने वाले हो, वहां पे टैक्स रेसिडेंट हो, अगर तुमको DDAA का बेनिफिट चाहिए तो ये राशन कार्ड दिखा दो, ये टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, द राशन सर्टिफिकेट। ओके, ये टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट दिखा दो तो मैं तुमको बेनिफिट दे दूंगा। अगर तुम उस घर में नहीं रहते, राम के घर में ही अगर शत्रुघ्न और भरत रहते हैं, वहां पे उनका राशन कार्ड है, तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा, अगर नहीं तो नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो राशन कार्ड आप बता दो, दैट इज देयर इंपॉर्टेंट। तो इट्स अ सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री दैट वुड कंस्टिट्यूट प्रूफ ऑफ टैक्स रेसिडेंसी। प्रूफ ऑफ टैक्स रेसिडेंसी वहां की होती है, तो आपको यहाँ पे इसका DDAA का बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो क्या मांगे हैं? सेक्शन 95 में ये बोला है, 90 सबसेक्शन 5, उसमें बोला है कि सच द डॉक्यूमेंट्स भी दे दो कि या तो आपकी TRC में, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट में, आपके राशन कार्ड में ये सब चीज मेंशन होनी चाहिए, स्टेटस, नेशनैलिटी, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, पीरियड, एड्रेस। ये क्यों सेक्शन लेकर आया समझो, ये क्यों रूल लेकर आया? बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में क्या होता था, वहां पे वो लिख के देते थे खाली ये SSC इज अ टैक्स रेसिडेंट। अरे भाई कब तक टैक्स रेसिडेंट है, पीरियड ही नहीं आता था। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अलग लैंग्वेज में आती है, फ्रांस के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज में TRC आती है, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में आती है। मैं पैसा पेपर लाके दे दूंगा, मेरा टैक्स ऑफिसर समझेगा कैसे? तो उन्होंने बोला भैया स्टेटस, नेशनैलिटी, पीरियड, एड्रेस, ये सारी चीज होनी चाहिए। ये नहीं हुई तो आप हमें लाके दे दो। अगर ये सारी चीज 21AB2 क्या बोलते हैं, रूल 21AB2 कि अगर ये सारी चीजें नहीं हुई, TRC में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आपको ऐसे डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी ये डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि हमारे डॉक्यूमेंट में एक वैलिड TRC में ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, और अगर नहीं हो तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्म 10F होता है, फॉर्म 10F आपको देना पड़ता है अगर ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई होती है तो ये भी हमें चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि TRC शुड बी फुल एंड कंप्लीट। ओके, राशन कार्ड का इंपॉर्टेंस समझिए। इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन 1 है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट कि कोई भी कंट्री को, अगर हम जैसे हम बोलते हैं ना कि रेसिडेंट की टैक्स की रेट ज्यादा है 40% रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कंपनीज की, और रेसिडेंट 30 की, फॉरेन कंपनी की 40% और डोमेस्टिक कंपनी की, it shall be not be regarded as a less favorable charge or levy of tax in respect of such company। तो ये डाउट हुआ किसको, ये डाउट आया कहां से? ऐसी तो कोई चीज हमने बोली नहीं है कि फॉरेन कंपनी से हम ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते और डोमेस्टिक कंपनी से कम चार्ज नहीं कर सकते। ये आया क्यों? इसलिए आया क्योंकि मोस्ट ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स में एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज होता है कि यार फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक, मतलब जो भी है, सारे एक तरह के लोगों को आप एक तरीके ही टैक्स करोगे। ओके, तो हमने बोला कि नहीं, हम अगर वो फॉरेन कंपनी हमारी डोमेस्टिक कंपनी बनती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसको टैक्स उतना ही करेंगे, पर अगर वो फॉरेन कंपनी है तो वो दो अलग तरह के लोग हैं। इसके लिए हम डाउट क्लियर कर रहे हैं कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ओके, ये तो क्योंकि दो अलग तरह के लोग हैं, अगर दो सेम तरह के लोग हुए तो मैं कभी भी एक चार्ज नहीं करूंगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये इंडियन गवर्नमेंट सब कंट्रीज को ये बोला है। और दूसरा एक कंसेप्ट होता है कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी, मतलब किसी ने इंडिया में से कोई प्रोजेक्ट बना रहा है और कोई बाहर से आ रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की वजह से भी ये डाउट आया था। तो इस डाउट को पूरा करने के लिए एक्सप्लेनेशन 1 लेकर आए। Now, how is the relief provided? What are the method of bilateral relief? It could be an exemption method or it could be a tax credit method. Example अगली स्लाइड पे है। Most of the Indian treaties have a tax credit method, but you have to go by treaty। Section 91 भी tax credit method ही बोलता है। तो tax credit method में क्या हुआ समझिए आप,
100 रुपए फॉरेन में हुए मिस्टर चाय वाला के टैक्सेबल, फॉरेन टैक्स 10 रुपए दे दिया उसने, इंडिया में उसकी इनकम ऑब्वियसली यही 100 रुपए है, ओके। डोमेस्टिक टैक्स बिफोर क्रेडिट कितना हुआ 30 रुपए, ये 10 रुपए का उसको क्रेडिट मिल गया, उसको इंडिया में 20 रुपए देने पड़े, टोटल उसकी टैक्स लायबिलिटी आएगी 30। दिस इज अ टैक्स क्रेडिट मेथड। आप फॉरेन में टैक्स पे कर दीजिए, यहाँ पे क्रेडिट ले लीजिए, कैशबैक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। दिस इज अ कैशबैक टैक्स क्रेडिट। एग्जम्पशन मेथड क्या है, 100 रुपए वहीं पे है, 10 रुपए वहां टैक्स दे दिए, यहाँ पे इंडिया में कोई टैक्सेबल नहीं, ये पूरा एग्जम्पशन। वंस यू हैव पेड टैक्स आउटसाइड इंडिया दिस इज फुली एग्जेम्प्टेड, ओके। तो ये एग्जेम्पशन मेथड है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे हमेशा लोअर रेट ऑफ टैक्स होगा, क्योंकि लोकल टैक्सेशन यहाँ पे नहीं होता है, ओके। देयर आर चांसेस कि यहाँ पे लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन ही होगा एग्जम्पशन मेथड में। इंडिया जनरली एग्जम्पशन मेथड नहीं फॉलो करता, इंडिया फॉलोज टैक्स क्रेडिट मेथड। बाहर पे करिए, यहाँ पे क्रेडिट ले लीजिए। सेक्शन 91 कंट्रीज विथ विच नो अग्रीमेंट एग्जिस्ट, कोई हाथ मिलाने को रेडी नहीं है भाई, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अग्रीमेंट नहीं है तो हमारे रेसिडेंट को दिस विल बी ओनली बेनिफिटेड आवर रेसिडेंट। हमारे रेसिडेंट की अगर कोई इनकम बाहर अक्रू होती है, ओके, एंड उसमें उसने टैक्स दे दिया, ओके, अक्रू आउटसाइड इंडिया, उसमें उसने टैक्स दे दिया और पे टैक्स कर दिया, ओके, और वहां पे कोई भी अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो टैक्स का क्रेडिट ले लीजिए, इतना डिडक्शन मिल जाएगा। एंड कितना मिलेगा, विच एवर इज लोअर, जितना उसने, आप इंडियन टैक्स की रेट निकालिए, ओके, और फॉरेन टैक्स की रेट निकालिए, जो भी लोअर है वो मिलेगा। ये मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको आगे समझाऊंगा, बड़े समझ लो। अगेन कैशबैक, यू कैन नॉट गेट मोर देन व्हाट यू हैव पेड, ओके। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न कैशबैक और टू लर्न टैक्स क्रेडिट, ओके। तो ये क्या बोलता है, कोई भी इंडियन रेसिडेंट बाहर से अगर फॉरेन इनकम कमा रहा है, सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन फॉरेन, हैज पेड टैक्स ऑन इनकम इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, आपने पे करा टैक्स, पे करा बहुत इंपॉर्टेंट है, पे करना बहुत जरूरी है, ओके, ऐसे नहीं यूं ही आपने बोल दिया तो आप इंडिया में उसको डिडक्शन लीजिए। तो ये कैसे वर्क करता है, एग्जांपल फॉर डिडक्शन अंडर 91, आप देखिए कैसे वर्क करता है। मान लीजिए फॉरेन कंट्री की रेट है 20% रेट, हमारे यहाँ पे उसकी एवरेज रेट आ रही है 30%, लाख रुपए की इनकम है, डिडक्शन कितना मिलेगा, 20,000 रुपए मिल जाएगा, 20%, क्योंकि ये लोअर है, ठीक है। सेकंड 2020 दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा क्रेडिट ले ले भाई, ओके, 20,000। लास्ट इज वेयर वी हैव टू बी कॉशियस। एवरेज रेट टोटल इनकम, इंडिया में तो बहुत ही कम रेट है 10%, बाहर 20% टैक्स होकर आया है, तो ये लोअर रेट लग जाएगी, उसको सिर्फ 10,000 का क्रेडिट मिलेगा, तो 10,000 वो छूट गया। यू कैन नॉट गेट बैक मोर देन व्हाट यू हैव पेड, ओके, और यू आर गोइंग टू पे इन इंडिया, ठीक है। आपने वहां पे तो 20,000 रुपए पे कर दिए, लेकिन इंडिया में 10,000 पे करने जा रहे हो ना उस इनकम पे टैक्स। इंडिया पे तो 10,000 रुपए की ही टैक्स दे रहे हो ना उस 1 लाख की इनकम पे, उससे ज्यादा कैसे ले लोगे वो, ठीक है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है। और एक मॉड्यूल का एग्जांपल भी मैं आपको ले लेता हूँ कि यहाँ पे टोटल इनकम हुई, फॉरेन इनकम 1,10,000 की आई, ये 1,10,000 पे 11,000 का टैक्स है, जो कि 10% टैक्स बताता है। तब डिडक्शन हो गया, इसकी 5,17,000 पे सिर्फ ये सेस मिला के 13,936 आई है। इंपॉर्टेंट है सेस मिलाना, क्योंकि सेस भी पार्ट ऑफ टैक्स है, ओके। तो मेरा टोटल रेट क्या आ गई 2.696, ठीक है। तो मैंने भले ही वहां पे 11,000 रुपए टैक्स पे किया हो, ये 2.696 मेरे यहाँ पे रेट लग जाएगी, और ये 2.696 जब भी रेट लगेगी, ओके, और उतना मुझे यहाँ पे 2.696 का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। 13,000 अगर यहाँ टैक्स आ रहा है तो मेरे को 10,970 रुपए देना पड़ेगा। यू कैन नॉट पे व्हाट मोर देन यू हैव पेड आउटसाइड इंडिया, और ऑन दैट इनकम यू आर पेइंग इन इंडिया। ये 1,10,000 पे तो आप ऑन एन एवरेज कितना टैक्स दे रहे हो, 2.696 ही टैक्स दे रहे हो ना, इससे ज्यादा कैसे क्रेडिट दे दूं भाई मैं, ओके। जितना दिया ही नहीं है उससे ज्यादा ले लेगा क्या भाई, ओके। So that is not allowed. So just remember this point in tax treaties, okay? And that's a important concept while understanding the tax credit, okay? Now we move to the next segment, which is tax treaties. So Sumant and Tanya going fine till now? Technological कोई issue तो नहीं है, सब ठीक चल रहा है? No sir, everything is fine. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. So अब हम टैक्स ट्रीटीज पे जाते हैं कि चलो ठीक है, आपने बता दिया कि सर क्रेडिट लेते हैं, व्हाट आर टैक्स ट्रीटीज, क्या होती है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो नेक्स्ट 15 मिनट्स विल स्पेंड ऑन टैक्स ट्रीटीज। दिस इज 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर, ओके।
व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल टैक्स लॉज? क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्स लॉ? यू नो, मल्टीलैटरल इंटरनेशनल अग्रीमेंट होते हैं, जैसे वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज है। ये एक तरह से आप मान लीजिए बाइबल है फॉर टैक्स लॉ ऑफ ट्रीटीज। वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज की आप कोई भी ट्रीटीज होती है उनको कैसे पढ़ेंगे आप, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हम पढ़ ही रहे हैं। एंड कस्टमर इंटरनेशनल टैक्सेशन, यू नो कि किस तरीके से हर कंट्री का लॉ चलता है, इन सबको समझना जरूरी है while understanding the international taxation law. डबल टैक्सेशन एंड कनेक्टिंग फैक्टर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थ्योरी के पर्सपेक्टिव से समझना है कि व्हाट आर द काइंड ऑफ डबल टैक्सेशन एंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कौन से तरह के टैक्सेशन को हटाते हैं। ओके, सो वन इज अ ज्यूरिडिशियल डबल टैक्सेशन, वन इज इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। So Mr. Ambani, who is a resident of India, is earning income from UK. Okay, यहाँ पे उनकी टैक्स होगी सोर्स रूल, जो हमने पढ़ा था कि सोर्स में वहां पे टैक्सेशन है, एंड टैक्स एज पर रेसिडेंस रूल। ओके, सो व्हेन इट इज टैक्स एज पर सोर्स रूल एंड रेसिडेंस, दिस इज अ ज्यूरिडिशियल। दो ज्यूरिडिक्शन में ये टैक्स हुआ है। ओके, so when source rule overlap, double taxation may arise. Tax is imposed by two or more countries या two or more jurisdictions. This is known as juridical double taxation. हमारा जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है जनरली इसी टाइप के इकोनॉमिक टैक्सेशन, ज्यूरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन को हटाता है। दूसरा इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या हो सकता है? एक ही इनकम दो बार टैक्स हो रही है, बट इन हैंड्स ऑफ डिफरेंट पर्सन। मिस्टर अंबानी ने यूनिलीवर खरीद ली, ठीक है, आज जिस स्पीड से मिस्टर अंबानी चल रहे हैं वो कुछ भी खरीद सकते हैं। ओके, तो मिस्टर अंबानी ने यूनिलीवर खरीद लिया, यूनिलीवर ने इनकम कमाया, डिविडेंड दिया, तो पहले सबसे पहले यूनिलीवर इस इनकम को यूके में टैक्स दिया, और फिर वो डिविडेंड आके मिस्टर अंबानी ने इंडिया में भी टैक्स दिया उस डिविडेंड पे। तो ये टू और मोर स्टेट में होगी, बट हैंड्स ऑफ डिफरेंट पर्सन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सब्जेक्ट आइडेंटिटी। ऐसा इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन जनरली डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं सॉल्व करते हैं। वेरी फ्यू केसेस में मेजरली ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन ही सॉल्व होता है in kind of, because they are two different person. This is resident of India, this is resident of UK. Why would India care about Unilever's tax liability? Okay, it might give some benefit to Mr. Ambani, that is in their own income tax act, but not through double taxation avoidance agreement. तो ये चीज का ध्यान रखें, which is a jurisdictional, दो jurisdiction में taxation हो रहा है तो juridical double taxation है, दो लोगों को टैक्स हो रहा है तो economic double tax। What is the definition treaty? ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। राम और श्याम बैठे आपस में अग्रीमेंट किया, इट इज बाइंडिंग ऑन इंटरनेशनल टैक्स लॉ। दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ वो ये ट्रीटी है। ओके, सो दैट इट इज देयर। नाउ एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटी सिग्निफाइज दैट पार्टी इंटेंड टू क्रिएट राइट एंड ऑब्लिगेशन। आप एक चीज समझिए, जब दो लोगों ने, राम और श्याम ने ट्रीटी करी, क्या पेड़ पे मैंगोज ज्यादा उग गए या दे आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द मैंगोज? तो आप ये समझिए, अ ट्रीटी कैन नेवर लेवी टैक्सेशन, इट कैन जस्ट क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टू डिस्ट्रीब्यूट। ट्रीटी की वजह से कभी कोई टैक्स नहीं होता, टैक्स तो आपके इनकम टैक्स एक्ट की वजह से ही होगा। ट्रीटी तो खाली डिस्ट्रीब्यूट करती है उस टैक्स को कि राम कितना लेगा और श्याम कितना लेगा, कंट्री ऑफ रेसिडेंस कितना लेगी और कंट्री ऑफ सोर्स कितना लेगा। ये कार्डिनल प्रिंसिपल है। अगर आप एक टेक अवे लेना चाहते हैं पूरे प्रेजेंटेशन से तो ये लीजिए कि ट्रीटी कैन नेवर इम्पोज टैक्स, इट कैन ओनली डिस्ट्रीब्यूट द टैक्स, बिकॉज दोनों के होने से मैंगो ज्यादा नहीं हो जाते, मैंगो उतने ही है, दोनों को कैसे बांटना है। तो ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। तो बोथ राम एंड श्याम विल सेट, यार श्याम तू पेड़ों का ध्यान रखेगा, तू बर्ड्स को भगाएगा, राम विल गिव फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड वाटर, एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट देयर spoil in that manner. So it only creates rights and obligation under enforceable international law. What is the need? ये भी आपको मोटा मोटा पता लगी गया है। Resolution of dispute और different treaty interpretation दोनों को समझने के लिए ट्रीटी की जरूरत है। Allocating taxing right, ये तो हम समझ लिया ना। Distribution, कौन कितना टैक्स करेगा। Assisting calculation of fair and legitimate tax, कभी कोई टैक्स नहीं देता तो ट्रीटी को recourse ले जाता है टैक्स कलेक्शन करने के लिए। Elimination of double taxation, ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। Elimination double taxation होएगा तो both business will not be able to survive. Okay, ensuring that there is a non-discrimination, capital import neutrality and capital export neutrality, ensuring there is a non-discrimination between resident and non-resident. इनको समझने के लिए नीड है ट्रीटी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
what are the different types of DDAA? There could be different types. एक हमारे बहुत ही फ्रेंड के साथ है पाकिस्तान के साथ में, वो खाली एयरक्राफ्ट प्रॉफिट पे, क्योंकि उससे हमारा इतना ही रिश्ता नाता है। तो अगर एयरक्राफ्ट कहाँ पे उड़ रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, वहां पे अगर टैक्स हो रहा है, जो भी उनके बीच के टर्म्स है वो लिमिटेड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हमने सब चीजों के लिए डिवाइडेशन नहीं किया, हमारे बीच में इतना ही प्यार मोहब्बत है तो हमने इतना डिवीजन कर दिया। कॉम्प्रिहेंसिव DTAA कि भैया पूरा, यू विल टेल हाउ मैंगोज विल बी डिवाइडेड, यू विल टेल हाउ लीव्स विल बी डिवाइडेड, यू विल टेल हाउ ब्रांचेस विल बी डिवाइडेड, जो ब्रांच गिरेंगी वो कैसे डिवाइड करोगे। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मेजरली इंडिया के काफी सारे कॉम्प्रिहेंसिव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। Now the next slide is that principles which must be considered by countries in their interest system। तो ये एक बेसिक बताया गया है कि किस तरह के प्रिंसिपल कंसिडर करे जाएंगे बाय कंट्रीज इन देयर ओन टैक्स सिस्टम। इक्विटी एंड फेयरनेस होना चाहिए। ओके, सेम इनकम अर्न्ड बाय डिफरेंट टैक्स पेयर्स मस्ट बी टैक्स एट सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। ओके, तो इक्विटी एंड फेयरनेस होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है पूरी तरह से फॉलो, बट दिस इज बेसिक प्रिंसिपल्स। ओके, इसमें भी डिफरेंट टैक्स पेयर मतलब डिफरेंट टैक्स पेयर बट ऑफ सेम टाइप्स होता है। ओके, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स पेयर हो, कोई सीनियर सिटीजन हुआ, मैं राइट दे सकता हूँ कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, तुम सीनियर सिटीजन हो, तुमको बेटर है। अगर कोई फॉरेन कंपनी का पी इंडिया में बन रहा है, मैं बोल सकता हूँ कोई बात नहीं, तुम फॉरेन कंपनी हो, तुम ज्यादा टैक्स भुगतो हो, कोई बात नहीं। बट सिमिलर पर्सन को मैं अलग टैक्स नहीं कर सकता, खाली कोई और सोर्स ऑफ इनकम या कुछ। न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी, कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी, कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी क्या है? रतन टाटा गोज एंड उन्होंने बोला कि मैं यूके में लैंड रोवर जगुआर खरीद रहा हूँ, मैं बिजनेस क्या बनाऊंगा, उसका बिजनेस डिसीजन इफेक्ट नहीं होना चाहिए बाय टैक्स फैक्टर। ऐसा जनरली होता नहीं, टैक्स फैक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट यस वो इंडिया में बनाए कि फॉरेन में बनाए, उसके लिए कैपिटल एक्सपोर्ट की न्यूट्रलिटी है, कैपिटल इंडिया में रखे या कैपिटल बाहर लेके जाए, न्यूट्रल होना चाहिए। कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी, बाहर का बंदा हो इंडिया का बंदा हो, हैरी पॉटर हो कि हरी पुत्र, ओके, दोनों को सेम ही टैक्स करोगे, दैट इज अ कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी। दिस टैक्सेशन आल्सो शुड प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अरे भाई लोग आएंगे, बिजनेस होगा तो ही तो टैक्स मिलेगा, लोग ही नहीं आएंगे, बिजनेस ही नहीं होगा तो टैक्स कहां से बढ़ेगा। तो हमेशा गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि टैक्स रेट कैसे बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और बिजनेस बढ़ाएं, और उससे अपने आप सर्कल बाय सर्कल होते होते टैक्स रेट बढ़े। तो ये भी एक चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, और इसको भी हम बोलते हैं टू प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड। नाउ OECD मॉडल है, यूएन मॉडल, इस पे हम आगे फोकस करेंगे। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, एलिमिनेटिंग डबल इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन एंड ये सारे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें, विल डिस्कस दिस मोर लेटर। ओके, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट। ओके, तो किसी किसी कंट्री बोलता है नहीं नहीं आई विल नॉट साइन DTAA, दे आर वेरी एडमेंट, बोले कि नहीं नहीं यार बहुत सारे कंट्रीज ऐसी हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं, नो वी आर मोस्टली टैक्स हेवन कंट्रीज वगैरह होती हैं या कुछ होती है कि नहीं नहीं। बट 10-15 साल में लास्ट में इतना इश्यूज हो गए हैं कि हमें मालूम नहीं पड़ता कौन केमन आइलैंड में टैक्स दे रहा है, कौन सेशल्स में है, कौन बहरीन में है, कौन मालदीव्स में है, कौन सी, ये सब सारे जो टैक्स हेवन है ना, ठीक है, जो भी ये देश है, तो हमें पता नहीं पड़ता वहाँ पे कौन टैक्स दे रहा है, कैसे टैक्स दे रहा है, क्योंकि कोई ट्रीटी नहीं है, कोई एक्सचेंज। तो उन्होंने बोला ठीक है यार आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मत करो, बट हमारे साथ एक टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट कर लो कि हम आपस में शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये शेयर कैसे करते हैं, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे करी है तो केमन आइलैंड वाला आपको देख रहा है, वो इंडिया में शेयर कर देगा। स्विट्जरलैंड के साथ भी एक बहुत डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ही है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंडिया से शेयर कर देगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। क्या इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, हम कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और हम मना भी कर सकते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन। स्विट्जरलैंड इतने सालों तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था कि जो भी यहाँ पे बैंक हैं, ओके। और एक चीज और समझ लेना, स्विस बैंक अकाउंट, कई लोग बोलते हैं स्विस बैंक अकाउंट, स्विस बैंक कोई नहीं है, बहुत सारे बैंक हैं जिसको स्विस बैंक टोटलिटी में बोला जाता है। ओके, तो स्विस बैंक बोलते थे हम,
शेयर नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्लाइनिंग आल्सो एंड ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी। और कॉन्फिडेंशियलिटी रखना इन्फॉर्मेशन, यू कैन नॉट टेक एन इन्फॉर्मेशन और उसको आप हवा में उड़ा सकते हो, नहीं, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल टेकिंग स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स इन्फॉर्मेशन अग्रीमेंट एंड ज्यूरिसडिक्शन। ये लीगल फ्रेमवर्क में कहाँ आते हैं? सेक्शन 91 में और 94A। कुछ जो हमारे पास टैक्स इन्फॉर्मेशन अग्रीमेंट है, बहामास, बहरीन, केमन आइलैंड्स वगैरह, मालदीव्स, ये वाले कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट भी है हमारे पास। तो ये चीज का भी हम यहाँ पे जरा ध्यान रखें कि डबल टैक्सेशन ऑर्डिनेंस अग्रीमेंट जहाँ पे नहीं होते हैं और जहाँ लिमिटेड ड्यूटी डबल भी नहीं है, वहाँ हम लोग टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई चल इन्फॉर्मेशन तो दे दे, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वी विल कैच द टैक्स इवेडर्स, हम टैक्स इवेडर्स को पकड़ेंगे ऑन दैट बेसिस। So I'll take my customary 10 seconds break to have water. I hope it's going till fine and under ज़्यादा speed अगर slow less है so please let me know, या कोई screen की issue आ रही तो please let me know. नहीं sir, it's going amazing. Okay, चलो अब basic principles of interpretation of treaty। सबसे पहले समझिए, ट्रीटी इज नॉट अ लॉ। ट्रीटी इज लाइक दैट, आप भाई बहन के बीच में आप डिसाइड करते हो कि यहां से यहां तक टीवी कौन देखेगा। ओके, अगर लौकी की सब्जी बनी तो कौन खाएगा। ओके, ये दोनों के बीच का डिवीजन है। ओके, सो इट्स अ ट्रीटी इज नॉट अ लॉ एंड इट इज ड्राफ्टेड बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड देयरफॉर इट इज नॉट ड्राफ्टेड बाय लॉ मेकर्स और समथिंग, इट इज ड्राफ्टेड बाय प्योर ब्यूरोक्रेट्स जो नेगोशिएटर होते हैं। नेगोशिएशन होता है कि तू 70-30 लेगा, क्या लेगा। समटाइम्स लूज लैंग्वेज होती है एंड देयरफॉर ऑलवेज सी द इंटेंशन बिहाइंड द ट्रीटी। ओके, ये वेरियस तरीके हैं पढ़ने के, ये कोई ऐसा नहीं कि कौन सा किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, और ये सारे तरीके नॉर्मल टैक्स लॉ में पढ़ने के काम भी आते हैं। बट क्योंकि आपके मॉड्यूल में ये दे रखा है, आई वांटेड टू कवर ओवर है बिकॉज लॉ को रटने से बजाय समझना कि कैसे लॉ को पढ़ना। आई जस्ट शेयर यू अनदर एग्जांपल। वियना लॉ कॉलेज है, वर्ल्ड का नंबर 1 लॉ कॉलेज बोल सकते हो आप। वहां पे अगर 4 साल का कोर्स होता है ना, ठीक है, तो 3 साल क्या सिखाते हैं? हाउ टू रीड, हाउ टू इंटरप्रेट। वो लॉ देते ही नहीं है, बोले लॉ मत पढ़ो। हम नहीं बता रहे कि फेमा ये है, इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा हुआ है, नहीं, कैसे पढ़ना है 3 साल वो पढ़ो और लास्ट ईयर पढ़ो लॉज। तो आप हमेशा जिंदगी भर लॉ पढ़ सकते हो, क्योंकि लॉ चेंज हो जाएंगे। आपने तो रटा था पहले ऐसा कि फेमा में ऐसा लिखा हुआ है, इनकम टैक्स में पहले ऐसा टैक्सेबल होता था, वो चेंज हो गया तो आप भूल जाओगे। बट व्हेन यू नो हाउ टू रीड अ लॉ, आप कभी नहीं भूल सकते, आप इंटरप्रिटेशन कभी नहीं भूल सकते। तो ये इंटरप्रिटेशन के कुछ गोल्डन रूल्स हैं, हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या है? मतलब हम बोलेंगे ऑर्डिनरी और लिटरल मीनिंग, जैसा लिखा है ना, कुछ मत देखो, आजू बाजू के सेक्शन नहीं देखो, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देखो, कुछ नहीं देखो, सिर्फ सेक्शन को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहो, जो मीनिंग समझ में आए वो होता है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं देखा मैंने वही प्यारा देखा जितना मुझे पढ़ना है, मैंने ना दायां देखा ना बायां देखा, जितना पढ़ना है उतना पढ़ा मैंने, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ओके, तो ऑर्डिनरी, लिटरल। Second is subjective. Okay, so you will have to see the common intention, okay, as per the context. मतलब मान लीजिए जब वो रूल लेकर आए थे तो पार्लियामेंट ने क्या बोला था कि हम ये रूल क्यों ला रहे हैं, ओके, उसके पीछे की कहानी क्या है, आगे पीछे के सेक्शन क्या बोलते हैं, ओके, that everybody needs to take care. तो वो है subjective interpretation. ऑब्जेक्टिव एक तरफ सब्जेक्टिव। ओके, थियोलॉजिकल या पर्पसिव, ये क्या पर्पस के लिए आया था? अगर ब्लैक मनी एक्ट आया था तो वो ब्लैक मनी को रोकने के लिए आया था, उसका पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है। तो एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्टिवली भी चीज समझ में आ रही है ना तो आप आगे बढ़ते नहीं हो, ठीक है, अनटिल अनलेस ये ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं रहती कि मैंने इसको एज इट इज पढ़ा तो ये बड़ा अजीब सा कंक्लूजन आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, तब आप आगे जाओगे। पर जब तक ऑब्जेक्टिव चीज क्लियर है तो आप आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। बट कई बार जरूरत पड़ती है कि भैया इसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस। जब ये एक्ट आया था तो उसका पर्पस क्या था लाने का,
उससे आप उसका इंटरप्रिटेशन लेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस, ये दोनों पर्पस और इफेक्टिवनेस कनेक्टेड है। जो पर्पस लाया था क्या वो इफेक्टिवली फॉलो हो रहा है, क्या वो काम हो पा रहा है क्या, ओके, क्या वो उसका उल्टा हो रहा है या कुछ और ही हो रहा है। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ है कि क्या जो पर्पस लाए थे, क्या जो पार्लियामेंट में बोला गया था, क्या जो मिनिस्टर ने स्पीच दी थी, ठीक है, कई बार आप देखिए डिबेट होती है कि मिनिस्टर ने स्पीच में तो ऐसा बोला था, बजट में कुछ और लिखा हुआ आ गया। Therefore, the purposive interpretation come into place. Okay. Principle of contemporary exposto. ठीक है, ये आप एक और जस्ट फन फैक्ट शेयर करता हूँ। यू नो व्हाई डू यू थिंक दैट इतने सारे लैटिन लैंग्वेज वर्ड यूज होते हैं हमारे लीगल रिपोर्ट्स? ऑब्वियसली बिकॉज लैटिन से काफी स्टार्टिंग हुई थी ये सब करने का, बट इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग निकल सकते हैं, लैटिन वर्ड जनरली फिक्स होते हैं, तो इसके लिए लैटिन वर्ड्स का यूज किया जाता है नॉर्मल लीगल लैंग्वेज में। ओके, कॉन्टेम्पोरेनियस मतलब जब आप ट्रीटी एट द टाइम ट्रीटी जब साइन हुई थी ना, उस समय उसका क्या मीनिंग था, उस समय उसका क्या मीनिंग था जब वो ट्रीटी साइन हुई थी, उस समय उस मीनिंग को लीजिए। अगर वो ट्रीटी वही की पड़ी है, सालों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, आप ट्रीटी को नहीं चेंज करोगे क्योंकि उस समय उसका मीनिंग था। दिस डज नॉट हैव अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल बिकॉज आजकल, एंड ये हॉटेस्ट लड़ाई है आज के रोज में डबल टैक्सेशन के अंदर, कि ट्रीटी को उस समय के टाइम पे समझोगे कि आज के टाइम पे, स्टैटिक वर्सेस एम्बुलेटरी अप्रोच हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोस्ट, लिबरल कंस्ट्रक्शन, ये जनरली लिया जाता है जो कोई भी क्लॉज एसएससी के बेनिफिट के लिए आता है उसको हम लिबरली, जैसे हम इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़ते हैं, सेक्शन 54 है लिबरल कंस्ट्रक्शन। ओके, सेक्शन 54 में हम ये पढ़ते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अब आपने अपने वाइफ के नाम पे कर लिया इन्वेस्टमेंट, यू नो लिबरल कंस्ट्रक्शन, कोई बात नहीं, वाइफ और आप तो एक ही हो ना, लिबरल कंस्ट्रक्शन। तो लिबरल कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो देयर मोस्ट इन द केस ऑफ बेनिफिशियल। इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड मतलब ट्रीटी एज अ होल देखो भाई, टोटलिटी देखो। ओके, क्या उसका मीनिंग आ रहा है, अगेन ये चीजें लिंक्ड हैं, बट इंटीग्रेटेड अप्रोच बोलता है ट्रीटी एज अ होल एंड देन अराइव फॉर एन ऑब्जेक्टिव एंड एट द एंड ऑब्वियसली रीजनेबल एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सडनली यू नो कंसिस्टेंसी नहीं रहे, एक बार तो आप ये चीज बोल रहे हो जो आपको यहाँ बेनिफिट कर रहा है, दूसरी बार आप दूसरी चीज बोल रहे हो बेनिफिट कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। सो दीज आर फ्यू गोल्डन रूल्स ऑफ लाइक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जैसा पढ़ा है वैसा ही, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ओके, कि आप उसमें से देखिए उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, पर्पसिव क्या पर्पस के लिए आया था, क्या वो पर्पस इफेक्टिवली सॉल्व हो रहा है, इफेक्टिवली कॉन्टेम्परेंस जिस समय ट्रीटी साइन हुई थी उस समय का कॉन्टेम्परेंस देखिए, उस समय एट द टाइम ऑफ ट्रीटी। ओके, लिबरल जनरली फॉर द बेनिफिट, इंटीग्रेटेड सी इट यू नो कंप्लीटली completely, and treaties reasonable and consistency देखो। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि जब भी ऐसी कोई चीज याद करनी हो, और आपको देखो एट द एंड सीए फाइनल का जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, अगर आप एक एक वर्ड बोल्ड कर दो या लिख दो यहाँ पे आपकी खुद की राइटिंग में, तो आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी में चल जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एक वर्ड पढ़ो और वो वर्ड से आपको सब चीज क्लिक हो जाएगी। ओके, एक्सट्रिंसिक एड कौन से हैं कि क्या क्या चीज आप देख सकते हो, प्रोटोकॉल, प्रीएम्बल, अभी हम सभी पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल आर्टिकल्स। सो इंटरनेशनल आर्टिकल्स बहुत है, क्लॉस वॉगल की एक फेमस बुक है जो कि काफी काम आती है, आप उनको रीड कर सकते हैं। प्रोविजन इन पैरेलल टैक्स ट्रीटी, इस टैक्स ट्रीटी में ये लिखा हुआ था, सेम मेरी टैक्स ट्रीटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज और आपको बता देता हूँ, टैक्स ट्रीटीज कुड बी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। राम एंड श्याम की टैक्स ट्रीटी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम श्याम एंड शत्रुघ्न एंड लक्ष्मण। देयर वुड बी डिफरेंट टैक्स ट्रीटीज बिकॉज हर एक में माइट इज राइट, कौन स्ट्रॉन्ग है पता नहीं ना, ठीक है, कौन की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है पता नहीं ना, तो देयर वुड बी डिफरेंट टैक्स ट्रीटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ ट्रीटी, कैसे इंटरप्रेट करो। सम एक्सटेंसिव एड जो नीचे हमने बताए थे वही सारी चीजें हैं, सो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। नाउ अ प्रोटोकॉल एंड अ प्रीएम्बल। ओके, तो प्रोटोकॉल इज लाइक अ सप्लीमेंट टू अ ट्रीटी, एक सप्लीमेंट है कि यू नो डाउट को हटाने के लिए, हमने कोई भी चीज बताने के लिए कि यार ये क्या है, कोई टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने प्रोटोकॉल लेकर आए। दैट प्रोटोकॉल कैन बी इज एन कैन बी टेकन, यार चलो इट्स एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दिस एक्सप्लेन्स दैट फॉर हियरबाय फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, या कोई टर्म्स को समझाने के लिए,
ये वाला प्रोटोकॉल है। प्रिएम्बल, प्रिएम्बल आपके पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। ये ट्रीटी क्यों लाई गई थी? प्रिएम्बल, ओके। एंड इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है, आजादी बचाओ आंदोलन, ओके। और मैं इस केस को हल्का सा 2 मिनट लेना चाहूंगा। इससे पहले मैं आपके को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये क्या दिख रहा है आपको? थाली, एक अनलिमिटेड थाली है, ओके। और ये जो अनलिमिटेड थाली है, ओके, एक बोर्ड लगा हुआ है अनलिमिटेड थाली का, और लेट से मिस्टर सुमंत वहां पे अनलिमिटेड थाली में खाने जाते हैं, ओके। एंड बिकॉज मिस्टर सुमंत यहाँ पे अनलिमिटेड थाली में खाने जाते हैं और उनको खाने पीने का बहुत शौक है, वो मंगवाते रहते सामान, आने दो आने दो आने दो, रुकते ही नहीं है, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, ओके। एंड व्हेन ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो वो अब क्या वो रेस्टोरेंट वाला उनको बोल सकता है मिस्टर सुमंत को, नहीं 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 प्लीज नाउ स्टॉप, वी कैन नॉट सर्व, बिकॉज उसका मोटिव ही यही था कि आप लोग अनलिमिटेड थाली खाने आए। अब कोई एक जना आके अगर ज्यादा खा गया, ओके, तो वो उसको रोक नहीं सकता। तो प्रिएम्बल, प्रिएम्बल क्या है उस ट्रीटी का? तो प्रिएम्बल एक इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी में था, इंकरेजमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो क्या हुआ, एक कंपनी मॉरिशस के रूट के थ्रू इंडिया में आ गई, और मॉरिशस इंडिया ट्रीटी में क्या लिख रखा है कि कैपिटल गेन्स कहां टैक्सेबल होगा? मॉरिशस में टैक्सेबल होगा, ओके। ये इंडिया के अंदर लिख रखा है, अगर इंडियन का कोई भी शेयर है वो उसकी टैक्सेबिलिटी मॉरिशस के अंदर होगी। तो लड़ाई कहां जीती? सुप्रीम कोर्ट तक गई। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आजादी बचाओ आंदोलन, ये एक ट्रस्ट थी जिसने लड़ा कि यार ये तो मॉरिशस बहुत नाटक कर रहा है, सब लोग मॉरिशस के थ्रू इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया का टैक्स बेस कम हो रहा है। एंड जबरदस्त घमासान युद्ध हुआ इस केस को लेके। एट द एंड ये निकला कि प्रिएम्बल बोलता है ना, इंकरेजमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रेड। हमें पता है कि मॉरिशस की वो शेल कंपनीज है, हमें पता है कि, लेकिन आपके ट्रीटी जो 2 सॉवरेन कंट्रीज है ट्रीटी में लिख दिया कि यार इससे इंडिया में क्या हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सपोज ये टैक्स का बेनिफिट नहीं देता तो होते इंडिया में म्यूचुअल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही नहीं। तो बिकॉज ऑफ इंकरेजमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रेड इस प्रिएम्बल में लिख रखा है, एंड देयरफॉर हम अलाउ करेंगे। अगर कोई मॉरिशस का बता देगा खाली वो टैक्स रेसिडेंट है पेपर पे, वो सारा काम नहीं कर रहा है वहां पे, कोई असली रेसिडेंट तो कोई और है, असली इन्वेस्टर तो कोई और है, तब भी हम उसको ये ट्रीटी का बेनिफिट देंगे, ओके। तो दैट इज व्हाई द प्रिएम्बल इज इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ये आजादी बचाओ आंदोलन हम कई जगह साइट करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्यों था और ये प्रिएम्बल की इंपॉर्टेंस थी। बिकॉज एक बार किसी ने अपने घर के आगे लगा दिया बोर्ड, रेस्टोरेंट के आगे बोर्ड लगा दिया अनलिमिटेड थाली, तो अंदर जाने के बाद मैं 5 चपाती मांगूंगी, 10 चपाती मांगूंगी, कोई भी चीज, ओके, वो मना नहीं कर सकता। So, Sumant, जी भर के खाना खाओ, okay, and let's take it forward, okay. I hope you don't mind me you're taking your name, okay, okay. It's quite okay. मैंने बताया था difference between ambulatory and static approach, okay, and this is the last topic before we go towards overview of model tax convention, ठीक है। ambulatory and static approach क्या है? चलिए, टीवी दिखता है, पुराना टीवी है, ओके। आपके और आपके भाई ने भाई बहन ने दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि टीवी का देखने का टाइम किसका क्या टाइम है, ओके। एंड ट्रीटी डिसाइड होगी दोनों के बीच में, ओके, कि यार टीवी व्यूइंग का टाइम ये है, 8 से 10 तू देख लेना, मेरा ये शो आता है, 8 बजे मेरा डांस इंडिया डांस शो आता है, 7 से 8 उसका कोई क्रिकेट मैच आता है T20, तो वो भाई उसमें देखेगा, एंड द सिस्टर विल वॉच लेट्स से डांस इंडिया डांस एंड दे विल सी दिस मैच, और दे हैव डिवाइडेड दैट टाइम एंड दे हैव डिवाइडेड विद अ ट्रीटी। सडनली धीरे धीरे टीवी की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, नेटफ्लिक्स आ गया, पर नेटफ्लिक्स का एक ही आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ओके। नाउ विल द सिमिलर ट्रीटी बी एप्लीकेबल टू नेटफ्लिक्स आल्सो, या वो टीवी के लिए ट्रीटी थी, वो व्यूइंग के लिए ट्रीटी थी कि वो टीवी के लिए ट्रीटी थी, ओके। अगर वो व्यूइंग के लिए ट्रीटी थी तो वो शायद नेटफ्लिक्स पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी, एंड दिस इज द हॉटेस्ट डिबेट राइट नाउ जो मैंने आपको बताया, और ना इंटरनेशनल टैक्स सर्कल, ओके। What if domestic tax law change हो गया, ओके, तो क्या मेरी डेफिनेशन DTAA की बदल जाएगी या क्या होगा? तो स्टैटिक अप्रोच तो क्या बोलता है कि नहीं 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 नहीं, वो ट्रीटी उस समय खाली टीवी के लिए थी भाई, नेटफ्लिक्स के लिए तो भाई बहन को अलग से बैठना पड़ेगा, अलग से डिसाइड करना पड़ेगा। It looks at the meaning at the time when the treaty was signed. When the treaty was signed, उस समय तो खाली टेलीविजन ही था। एम्बुलेटरी अप्रोच बोलता है कि लुक्स एट द मीनिंग ऑफ द टर्म एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटी प्रोविजन। अरे भाई टीवी तो साइड में पड़ा रहता है, कोई नहीं देखता आज के रोज में,
नेटफ्लिक्स से चलता है, तो आई हैव टू सी द टाइम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटी प्रोविजन. सो स्टैटिक वर्सेस एम्बुलेटरी अप्रोच, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग स्टैटिक अप्रोच बिकॉज वो बोलते हैं उस समय टर्म्स डिसाइड हुई थी भाई. ओके, ये नेटफ्लिक्स के लिए तो अलग से फॉलो करना पड़ेगा. एंड ये इन दोनों के बीच की स्टैटिक वर्सेस एम्बुलेटरी अप्रोच की कहानी है. सो मीनिंग ऑफ द टर्म नॉन डिफाइंड इन द ट्रीटी एज पर डोमेस्टिक लॉ. लोगे कि नहीं लोगे, डोमेस्टिक लॉ चेंज हो गया बाद में. अगर ट्रीटी में जो डिफाइन कर रखा है वो तो कोई बात नहीं, वो तो वही रहेगा क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन हो गया. ओके, बट डोमेस्टिक लॉ तो रोज चेंज होते रहते हैं. आप देखेंगे हमारे बजट में कभी 100 अमेंडमेंट आते हैं, कभी 150 अमेंडमेंट आते हैं. उसके मीनिंग कहां से निकालोगे? ओके, उसकी मीनिंग क्या लोगे? ओके, that is important to understand static versus ambulatory approach. People are generally following static approach, and I'm telling you this is the hottest topic, so this can come in your exam also because I have seen your paper. They are very practical, very pragmatic, and very latest examples आते हैं उसके अंदर. तो ये static versus ambulatory example का, Netflix versus TV का मेरा example आप ध्यान रखना. Now we come to the very important topic, overview of model tax conventions. Okay, so Suman, what's the time tracking? How much time do we have? Because normally मैं time track रखता हूँ, but today मेरे को ध्यान देना कि कब हमने start किया है. So how much time do we have? 10:25 हुआ है ना, so कब तक? 10:45. So we started a little late, so maybe let's say 11 कर लेते हैं. So half an hour I'll cover. Perfect. Okay, sir. Okay, so Thank you. Okay, चलो. So overview of model tax convention. अगले 30 मिनट हम इसमें पढ़ने वाले हैं. I unfortunately have to take a break into that to how so इसको हम समझते हैं what is the model tax. So why model tax be required? Residence and source state क्या होता है? Significant motive, and a majority of time will be spent on what are the various articles. How do you read it? Okay, कैसे पढ़ना है? मैं प्रैक्टिकली आपको ट्रीटीज पढ़ के बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है. आप एग्जाम में कैसे पढ़ सकते हो, ये प्रैक्टिकली इसमें बताया जाएगा. Why? सबसे पहले मॉडल टैक्स ट्रीटी क्या होता है? अगेन एग्जांपल ऑफ राम एंड श्याम. ओके, मान लीजिए राम और श्याम के बीच में एक ट्रीटी है. ओके, राम और शत्रुघ्न के बीच में एक ट्रीटी है, लक्ष्मण और भरत के बीच में एक ट्रीटी है. ऐसी कितनी टाइप की ट्रीटी हो जाएगी अलग अलग. एंड फॉर एन इंटरनेशनल टैक्सेशन एक्सपर्ट और फॉर अ बिजनेसमैन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो देयर हैज टू बी अ स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, यार ये स्टैंडर्डाइज है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, उठा लो. जैसा स्टैंडर्ड है इस स्टैंडर्ड से आप चालू कर लो और उसके बाद जो आपको वेरिएशन करने वो कर लो. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉडल टैक्स ट्रीटी की होती है स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि ये कंट्रीज ने आपस में डिसाइड कर लिया, सब कंट्रीज मिल गए. तो राम, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, श्याम सब एक साथ बैठ गए एंड दे डिसाइडेड कि यार पहली लाइन तो ऐसा लिखेंगे, पहला आर्टिकल ये होगा, सेकंड आर्टिकल ये होगा. हम जब लॉस पढ़ते तो हम एक्ट पढ़ते तो हम बोलते हैं सेक्शंस, इसमें होता है आर्टिकल्स. ओके, तो पहला आर्टिकल ये होगा, सेकंड आर्टिकल ये होगा, थर्ड आर्टिकल जनरली ये होगा, फिर आपस में नेगोशिएट कर लेंगे जो भी चलेगा. ओके, सो ये चीज का आप ध्यान रखना कि सबसे पहले स्टैंडर्डाइज, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन. ओके, फिर आप अपना नेगोशिएट कर लो. यूज्ड बाय वेरियस कंट्री एज अ रेफरेंस पॉइंट कि भाई हम इसको यूज कर लें, हम इसको यूज कर लें ऐसा. और कई बार लोग एज इट इज भी उसको यूज कर लेते हैं कि यार कौन सा टेंशन लेगा. जैसे यूरोपियन यूनियन है, वो बोलती है कि हम तो एज इट इज अडॉप्ट कर लेते हैं, सब आपको एक जैसा लफड़ा नहीं लेना किसी को. तो सबने बोला 10% शेयर विल बी विद द सोर्स कंट्री, 10% शेयर विल बी सोर्स कंट्री, ऑल ऑफ अस अडॉप्ट दैट. बट कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम तो चेंज करेंगे, तो हम चेंज करेंगे. तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन के लिए, एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, और कई बार आप उसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं. ये व्हाट आर द रेसिडेंट सोर्स एंड अ सोर्स स्टेट. तो मिस्टर पप्पू है, ओके, और इनकम अर्न करते हैं वो यहाँ से इटली से, और रेसिडेंट है कंट्री ए के. ओके, सो कंट्री ए एंड कंट्री बी. तो कंट्री बी है यहाँ पे, कंट्री ए है, कंट्री बी से वो इनकम अर्न करते हैं, कंट्री ए से वो रेसिडेंट है. ओके, ये तो उनके लिए हो गया कंट्री ऑफ सोर्स, सोर्स स्टेट, ये हर जगह काम आएगा. एंड ये कंट्री ऑफ रेसिडेंस. ओके, and again I'm telling you tax treaty only distribute or assign tax jurisdiction, it does not impose tax. और कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक टिप्स दिए थे कि हमेशा हर चीज के लिए एक पैरा रेडी कर लो. तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का अगर कोई भी पैरा, आप कोई भी क्वेश्चन है ना, तो एक पैरा आपको फिक्स कर लो कि टैक्स ट्रीटी ओनली डिस्ट्रीब्यूट्स और असाइन टैक्स जुरिसडिक्शन, इट डज नॉट इम्पोज टैक्स. पहली लाइन ही कोई पढ़ेगा ना तो बोलेगा यार इस बच्चे को पता है कि टैक्स ट्रीटी होती क्या है.
एक 4 लाइन का एक पैरा फिक्स कर लो और उसको हमेशा हर अपने एग्जाम के अंदर आप यूज करो। ऐसे DTAA के लिए कर लो, ऐसा पेप्स के लिए कर लो, ऐसा ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए कर लो, मोटे मोटे एक पैरा बना लो और इट विल गिव अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन टू अ टीचर हु इज चेकिंग द पेपर। नो, अब मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन कितने तरीके के होते हैं? ओके, तो ऐसा तो है नहीं पूरी दुनिया एक ही तरह में रेडी हो जाएगी टेक्स्ट कन्वेंशन में। ओके, सो OECD मॉडल कन्वेंशन, UN मॉडल कन्वेंशन एंड US मॉडल, ये तीन। US पूरी दुनिया में अलग चलता है, पूरी दुनिया एक तरफ, US एक तरफ। तो पहले समझते हैं OECD और UN मॉडल क्या है। OECD मॉडल कन्वेंशन एक डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में की एक कमिटी बनी हुई है, एक्सेप्ट US हटा दो तो OECD में US भी है मेंबर, बट वो ये OECD मॉडल वो लोग ये फॉलो करते हैं। एंड मैंने आपको क्या बोला था, माइट इज राइट, जो स्ट्रॉन्ग है वो बताएगा कि कहां पे टैक्स होना चाहिए। तो OECD मॉडल ट्रीटीज में आप देखेंगे ज्यादा भार दिया है रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन को। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री से ही तो सारे पेड़ उगे थे, डेवलप्ड कंट्री से तो सारी कंपनीज बड़ी हुई थी। आज आप देख लीजिए, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं HP का, वो कहां से है? US का आया है। आप यूज कर रहे हैं, मैं बोस का यूज कर रहा हूं, वो कहां से आया? US से आया। या कोई भी चीज, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ओके, वो क्या बोलेंगे? रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, मैक्सिमम टैक्स हमें दो, थोड़ा टैक्स सोर्स को देना, हम नहीं दे, थोड़ा टैक्स सोर्स को देना, मैक्सिमम टैक्स हमारा होना चाहिए। तो रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, और ये मैं आपको आगे प्रूव करूंगा, आपको एक भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पलक झपके से समझ जाओगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन OECD मॉडल एंड UN मॉडल। आप समझ जाओगे कि कहां पे किसका टैक्सेशन है, आप ट्रीटी देख के समझोगे कौन सी मॉडल ट्रीटी है ये, इतना मैं आपको ये समझा दूंगा। तो इट्स अ रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। UN मॉडल थोड़े से थर्ड टायर कंट्रीज, ओके, डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पे यूजर बेस ज्यादा है। ओके, तो ये क्या होता है? मोड ऑफ सोर्स बेस्ड टैक्सेशन का। तो यूजर क्या बोलते हैं? श्याम क्या बोलेगा? इंडिया क्या बोलेगा? मेरे यहाँ पे सारे यूजर है भैया, अगर फेसबुक के यूजर ही खत्म हो गए, टिकटॉक के यूजर ही नहीं रहे, इंडिया ने यूज करना छोड़ दिया, तो क्या हालत हो जाएगी? कौन पैसा कमाएगा? कौन वैल्यू क्रिएशन? किधर से आपको प्रॉफिटेबिलिटी? कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो इंडिया वाली ट्रीटीज में आपको मिलेगा जहां पे इंडिया स्ट्रांग है, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। ओके, सो ऑलवेज UN मॉडल विल एक्सपेंड द स्कोप इन सोर्स कंट्री। ध्यान रखिए, ये मेरे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। UN model will expand the source in source country. OECD model will contract the tax in source country. ये हमेशा ध्यान रखिए। और US तो भैया आपको पता ही है, applied by the United States in their own model, अपने हिसाब से चलते हैं। Obviously US के अंदर ही ज्यादा टैक्सेबिलिटी होती है। तो OECD model, UN model and US model, that is important to understand. Title and preamble to the model. Okay, ये OECD and US model, I understand it's not in course, so we will focus on OECD model and a UN model. So OECD model क्या बोलता है? प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस के लिए हमने ये बनाया है। UN मॉडल बोलता है, ये टाइटल है, टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन के लिए बनाया है। ओके, तो ये वाली चीज, तो यहाँ पे बोलता है अवॉइडेंस, ये बोलता है UN मॉडल बोलता है इवेजन। ये अवॉइडेंस और इवेजन में क्या डिफरेंस है, ये हम शाम को पढ़ेंगे गार के अंदर। तो ये बोलता है प्रिवेंशन ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन एंड अवॉइडेंस। ठीक है, पहले क्या बोलता है? दोनों में से किसको पहले प्रेफरेंस दे रखा है, यही फर्क है इसके अंदर। OECD मॉडल में भी प्रीएम्बल बता रखा है, आई विल नॉट गो डीप इनटू दैट। अब हमने क्या किया है, आपको एक प्रैक्टिकल फील देने के लिए हर एग्जाम्पल के बाद एक इंडिया सिंगापुर ट्रीटी का एक्चुअल पेज बताया है। ओके, तो आफ्टर एवरी एग्जाम्पल वी आर टेलिंग यू कि ये इंडिया सिंगापुर ट्रीटी में कैसा दिखता है। ओके, तो ये उसका प्रीएम्बल है। कब आई थी? 27 नवंबर में 1994 को आई थी, दोनों देशों ने साइन करी थी बाय द। और ये किसके लिए है? व्हाट इज द प्रीएम्बल? अभी इसका प्रीएम्बल समझिए। द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर डिजायरिंग टू कंक्लूड एन अग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन। तो हमने किसके लिए लेकर आए इसको? डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जैसा मॉरिशस वाली ट्रीटी में लिख रखा था। ओके, सो मॉरिशस वाली ट्रीटी में ये एडिशनल लाइन लिख रखी थी, इसकी वजह से वो आजादी बचाओ आंदोलन में जीत गया। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन। ओके, so that is the basic I would say, ये नोटिफिकेशन 1994 से आया।
अब ये बेसिक आर्टिकल्स किस तरह के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अगेन अब ध्यान रख लीजिए, आप और आपकी बहन के बीच में या राम और श्याम के बीच में ट्रीटी होगी तो पहले सबसे पहले क्या बताओगे, कौन कौन लोग कवर हैं, ये नेटफ्लिक्स वर्सेस टीवी के अंदर जो कौन देखेगा, इसमें आपके पापा भी कवर है क्या, मम्मी भी कवर है क्या, कौन कवर है, फिर इसमें क्या क्या चीजें टैक्सेस कवर है, इसमें नेटफ्लिक्स कवर है, ठीक है, इसमें अमेजन प्राइम कवर है, इसमें टीवी कवर है, इसमें रेडियो भी कवर है, ठीक है, इसमें जो आपके घर में मतलब कोई अमेजन एको, गूगल एको पड़ा है तो वो भी कवर है, ओके, क्या क्या चीज कवर है इसके अंदर, फिर रेसिडेंट कौन होगा, एंड फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप यहाँ पे, ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज है ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बिजनेस प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो ग्रीन वन इज द स्कोप, ऑरेंज वन इज द डेफिनेशन, ब्लू वंस आर बेसिकली यू नो कि कौन कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविडेंड ऐसा होगा, इंटरेस्ट ऐसा होगा, कैपिटल गेन ऐसा होगा, इन पे कुछ कुछ पे हम फोकस करेंगे, कुछ कुछ आई अंडरस्टैंड इज नॉट इन योर कोर्स, सो वी विल नॉट टेक इट। द पर्पल वन इज एंटी अवॉइडेंस, एसोसिएट एंटरप्राइज जो कल हमने ट्रांसफर प्राइसिंग वाला पढ़ा था ना, वो चीज है एंटी अवॉइडेंस की कोई चीटिंग नहीं कर ले यहाँ पे, ओके। ये अगेन डिस्ट्रीब्यूशन आ गए, पेंशन कैसे होगी, गवर्नमेंट कैसे होगा, स्टूडेंट वगैरह। द रेड वन इज क्रेडिट कैसे दोगे आप, एलिमिनेशन और डबल टैक्सेशन, एंड द ब्लैक वन आर द मिसलेनियस, ओके। तो ये यूएन मॉडल ट्रीटी के लिए है, ओईसीडी में टेरिटोरियल एक्सटेंशन करके एक और आर्टिकल है वो भी ऐड हो जाता है, पर हमने अभी यूएन मॉडल कन्वेंशन के अंदर, तो ग्रीन वन स्कोप, ऑरेंज वन डेफिनेशन, ब्लू वंस आर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्पल वन इज एन एंटी अवॉइडेंस, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज एंटी अवॉइडेंस, एंड दिस इज यू नो रेड वंस आर द क्रेडिट वंस, तो ये चीज का हमको ध्यान रखना। नाउ व्हाट आर द पर्सन्स कवर्ड, कौन कौन से लोग कवरेज हुई है, ओके। सो रेसिडेंट ऑफ कंट्री सोर्स, भाई दोनों की जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, अब यहाँ पे वर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटी में ये अलग अलग वर्जन नहीं है, जैसे कि इंडिया के लोगों के लिए अलग वर्जन और सिंगापुर के लोगों के लिए अलग वर्जन, ओके। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वर्ड यूज किया हुआ है और ये कहाँ काम आएगा हम देखेंगे, ओके। तो रेसिडेंट के लिए, और फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी, फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यूएस में जो पार्टनरशिप होती है ना, इंडिया में पार्टनरशिप कैसे टैक्स होती है, पार्टनर्स टैक्स देते हैं, तो इट्स चला तो दो पार्टनर ही रहे, पर इट्स अ फिस्कली ओपेक एंटिटी, टैक्स कौन देता है, पार्टनर देता है, एचयूएफ के मेंबर टैक्स देते हैं, एचयूएफ टैक्स देता है, ओके। फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी कौन सी होती है, जैसे यूएस में पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एस कॉर्प होती है वहां पे, ठीक है, वो एलएलपी पे टैक्स कौन देता है, पार्टनर देता है, ओके। एलएलपी टैक्स नहीं देती है, पार्टनर टैक्स देते हैं उनके इंडिविजुअल हाथ में, ये दोनों तरह के सिस्टम चलते हैं, फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी और फिस्कली ओपेक एंटिटी। सो उनको भी यू नो यहाँ पे समझा जाएगा। तो अगर फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी हुई ना, तो उनके जो पार्टनर हैं उनके रेसिडेंट को भी यहाँ पे उनके रेसिडेंट को भी ये ट्रीटी अवेलेबल है, ठीक है। सो मान लीजिए यूएस में एक एलएलपी है, यूएस के एलएलपी के जो पार्टनर है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो ये जो यूएस के एलएलपी के जो पार्टनर है ना, उनको भी यूएस की ट्रीटी का बेनिफिट मिल सकता है। तो रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड अ फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी, ओके। तो आप फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी और फिस्कली ओपेक एंटिटी के डेफिनेशन पे जरूर ध्यान दीजिए। अगेन इंडिया सिंगापुर ट्रीटी, द अग्रीमेंट शैल अप्लाई टू पर्सन हु आर रेसिडेंट ऑफ वन और मोर द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। रेसिडेंट, राशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना, राशन कार्ड रेसिडेंट प्रूफ करना पड़ेगा, आपको रेसिडेंट होना जरूरी है, हर कोई आके नहीं ले सकता, रेसिडेंट ऑफ वन और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 2, कौन से टैक्सेस कवर करोगे भैया, क्या सारे, क्या जीएसटी कवर हो जाएगा, फॉरेन के आदमी ने यहाँ पे जीएसटी दे दिया, वो वहां पे क्रेडिट लेगा, नहीं भाई, इनकम टैक्स कवर है प्लीज, ठीक है। दुबई में लोकल टैक्सेस लगते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस, वहां पे कंपनी एस्टैब्लिश करने के टैक्सेस लगते हैं, क्या वो कवर है, नहीं भाई, देखना पड़ेगा ट्रीटी में क्या लिख रखा है। यूएस में, इंडिया में तो एक ही इनकम टैक्स एक्ट है, यूएस में 51 इनकम टैक्स एक्ट है, एक तो फेडरल 50 स्टेट के, ओके। तो क्या स्टेट की इनकम टैक्स का मिल जाएगा डिडक्शन, नहीं, क्यों मिलेगा भाई, ओके, लिख नहीं रखा ट्रीटी में। या तो मैं उस स्टेट के साथ इंडिया के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो मिलेगा, या यूएस भी ये लिख दे कि आपको यहाँ का लोकल वाला क्रेडिट मिल जाएगा, दोनों ट्रीटी के अंदर तो मिल जाएगा। तो टैक्सेस कवर्ड, तो क्या बोलते हैं, टैक्सेस कवर्ड ऑन इनकम एंड कैपिटल एंड एलिमेंट ऑफ इनकम एंड कैपिटल, कोई किसी में भी एलिमेंट हो, यू नो, इनकम ऑफ कैपिटल,
तो ये इंक्लूडिंग, ये इस डेफिनेशन को एक्सपैंड करता है। इनकम ऑफ बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह के, थोड़े एग्जांपल दे दिए, कैपिटल एप्रिसिएशन पे, वेजेस एंड सैलरी, मूवेबल इनकम एंड कैपिटल एंड ऑन एलिमेंट्स ऑफ इनकम ऑफ कैपिटल, ओके, इनको भी इंक्लूड करता है इस पे कवरेज ऑफ टैक्सेशन। एक्चुअली में देखते कैसा लिखा होता है इन इंडिया, क्योंकि मैंने देखा आपके क्वेश्चन पेपर में एक्चुअल ट्रीटीज उठ के आती है, एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। इससे ज्यादा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड एग्जाम मैंने नहीं देखा। ओके, सो हैट्स ऑफ टू आईसीआई फॉर गिविंग सच एन एग्जामिनेशन। ओके, इंडिया में क्या बोलोगे, इनकम टैक्स एंड सरचार्ज देयर ऑन। तब हमने देखा था जब हमने वहां पे डबल टैक्सेशन क्रेडिट के लिए सरचार्ज और सेस वगैरह ऐड भी किए थे, तो इनकम टैक्स इंक्लूड सेस एंड सरचार्ज, दोनों चीजें यहाँ पे ऐड होगी। सिंगापुर में इनकम टैक्स एंड एन आइडेंटिकल और सब्सटेंशियली सिमिलर टैक्सेस, ये आएगा। ओके, तो ये वाली चीज आइडेंटिकल और सब्सटेंशियली सिमिलर टैक्सेस भी हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा वैट, म्युनिसिपल टैक्सेस। ओके, तो ये डिफाइन कर रहे हैं कि क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी, वैट म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे, खाली ये जो इनकम टैक्स या तो इंडिया में दिया हुआ है या सिंगापुर में दिया हुआ है वो टैक्सेबल होगा। आर्टिकल 3 आपको जनरल डेफिनेशन बताता है कि किस, एक हमेशा जैसे हर एक्ट का हमारा सेक्शन 2, इंडिया में जितने भी एक्ट है सबका सेक्शन 2 डेफिनेशन बताता है, वैसे ही आर्टिकल 3 जनरल डेफिनेशन बताता है, चाहे ओईसीडी मॉडल हो या यूएन मॉडल को। ठीक है, कि पर्सन कौन है, कंपनी किसको बोलेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, बिजनेस किसको समझा जाएगा। ओके, और एनी टर्म नॉट डिफाइंड, ओके, हमने पढ़ाई था कि अगर टर्म नहीं डिफाइन हो तो लोकल लॉज में ले लो। ठीक है, तो उसमें लिख रखा है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 93 एक्सप्लेनेशन 4, सेक्शन 93 सबसेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन 4। ठीक है, एनी टर्म नॉट डिफाइंड देयरइन unless the context otherwise have the meaning at the time of the law of the state for the purpose। ये देखो क्या बोल रहा है, have the meaning that has at the time under the law of state। ये क्या बोलता है, स्टैटिक अप्रोच, जिस समय हमने ट्रीटी साइन करी थी ना, ठीक है, उस समय की मीनिंग आप करेंगे। ओके, तो स्टैटिक अप्रोच को यहाँ पे प्रेसिडेंस दी हुई है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ऊपर बोला गया अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, और ये 5 वर्ड पे पूरा झगड़ा चल रहा है देश पे, पूरी वर्ल्ड में, कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, वो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। इस कॉन्टेक्स्ट की वजह से कहीं मैं एम्बुलेटरी अप्रोच पे तो नहीं आ जाऊंगा कि आज के रोज में जो ट्रीटी बोलती है, ये 5 वर्ड्स पे हजारों सेमिनार हो रहे हैं, सिर्फ 5 वर्ड्स। ओके, कि ये अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स का मीनिंग क्या है। ओके, तो ये मैं आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल फ्लेवर दे रहा हूँ क्या चल रहा है। ये ऐसे जनरल डेफिनेशन है। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आगे काम आएगी, अ टर्म अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मीन इंडिया और सिंगापुर एज द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे हम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। सिंगापुर मतलब रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, तो साफ साफ लिखा हुआ होता है क्या चीज कवरेज है। इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया और ये मैरीटाइम जोन, सॉवरेन राइट्स वगैरह ही है। तो अगर ये भी देखना पड़ता है कहाँ पे वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बिक रही है वो इंडिया में सही में है कि नहीं है, वो इसका स्कोप का पार्ट भी होगी कि नहीं होगी। ओके, फिस्कल ईयर मतलब क्या, प्रीवियस ईयर जैसा सेक्शन, कैलेंडर ईयर, ये भी साफ साफ लिखना जरूरी है। तो बेसिकली आपने टर्म्स डिफाइन कर दिए यहाँ पे। ओके, और यहाँ भी बता दिया एनी टर्म्स नॉट डिफाइंड देयर इज until unless the context otherwise require have the meaning which it has under the law of that state concerning। तो इसने भी बता दिया हमको कि क्या करेंगे, एनी टर्म नॉट डिफाइंड therein shall under, ये भी बता दिया। आर्टिकल 4 रेसिडेंट कौन है जिनके पास राशन कार्ड है। एक चीज समझ लेना, सिटीजन डज नॉट बिकम टैक्स रेसिडेंट ऑटोमेटिकली। ओके, सिटीजन टैक्स रेसिडेंट नहीं बनता है ऑटोमेटिकली, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप वहां पे टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स रेसिडेंट हो तो आप टैक्स रेसिडेंट हो। ठीक है, सो रेसिडेंट ऑफ आइदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, a taxpayer has to demonstrate that he is a resident of one or both के भी हो सकते हैं, और ये both के एग्जांपल क्या होंगे ये हम देखेंगे। to be able to gain access to tax city and available benefits there, and meaning of the residence क्या है, any person who under the laws of that state is liable to pay tax, जो भी वहां पे liable to tax है वो वहां पे उसका रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मानेगा। कई सारे तरीके यूज होते हैं, डोमिसाइल हो सकता है, रेसिडेंस हो सकता है, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लेस कंपनीज के केस में प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन माना जा सकता है, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट भी माना जा सकता है। एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया जनरली यूज होते हैं रेसिडेंस के लिए। पर अगर
कोई जना दोनों प्लेस का रेसिडेंट है तो फिर क्या होगा? एक टाई ब्रेकर रूल होता है जो कि होने वाला है। तो हमारी फेवरेट एक्ट्रेस इंडिया में भी रहती है, ठीक है, और यूएस में भी रहती है, ठीक है, पीहर इंडिया में है, ससुराल यूएस में है, ठीक है, फैंस दोनों जगह हैं, काम भी इंडिया में हो रहा है, काम हॉलीवुड में भी हो रहा है, काम बॉलीवुड में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, दोनों जगह की रेसिडेंट है। लेट्स से she is a resident in India because she stays more than 183 days. Let's say she is also resident in India because she is a green card holder. एक इंपॉर्टेंट चीज यूएस की बता दूं, यूएस में जो सिटीजन है चाहे वो एक दिन भी ना रहे इंडिया यूएस के अंदर, वो वहां का रेसिडेंट हो जाता है उनके एज पर लोकल लॉ में। पहले हम देख रहे हैं लोकल लॉ में इंडिया में 183 डेज से ज्यादा, लोकल लॉज में इंडिया रेसिडेंट। यूएस में लोकल लॉ में सिटीजन है, लेट से वो ग्रीन कार्ड होल्डर मिल गया, वहां के सिटीजन हो गए, तो वहां पे यार टैक्स सिटी के लिए कौन सी देश का रेसिडेंट मानोगे इनको? उसके लिए होता है टाई ब्रेकर रूल फॉर एन इंडिविजुअल। ओके, तो टाई ब्रेकर रूल क्या बोलता है? सबसे पहले देखो परमानेंट होम कहाँ है। वेदर पीसी हैज अ परमानेंट होम इन इंडिया और इन यूएस, दोनों में से जहां परमानेंट होम है वहां पे रेसिडेंट हो गई। ऑब्वियसली पीसी हैज परमानेंट होम बोथ प्लेसेस। ओके, दोनों जगह परमानेंट होम है। तो अगर नहीं परमानेंट होम दोनों जगह है या दोनों जगह नहीं है, तो आप सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट देख लो। सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट कहाँ पे आपका घर बार है, मतलब कहाँ पे आपके जान के लोग रहते हैं, कहाँ पे आप बिजनेस करते हो। नाउ पीसी डज बिजनेस बोथ द प्लेसेस, इंडिया में भी है, हॉलीवुड में भी कर रही है और शोज, और बॉलीवुड में भी मूवीज आ रही हैं, सब चीज चल रही है। ओके, ठीक है, एक जगह पीहर एक जगह ससुराल, ओके, दोनों जगह है, तो सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट भी दोनों जगह है। आगे बढ़ो भाई, ये भी नहीं पता लग रहा, देन यू विल से कि परमानेंट होम अगर दोनों जगह हो या दोनों जगह नहीं हो और सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट नहीं पता लग रहा, तो देख लीजिए हैबिचुअली कहां पे रहती है। हैबिचुअली अबाउट कहां है? हो सकता है यार पैसे वाले लोग हैं, दोनों जगह घर हो सकता है, पैसे वाले लोग हैं, दोनों के काम कर सकते हैं, हैबिचुअली कहां पे रहते हैं ज्यादातर, वो देख लीजिए आप। ओके, तो भैया दे कीप शिफ्टिंग, कोरोना का टाइम है अलग चीज है, बाकी दे कीप शिफ्टिंग, तो हैबिचुअल अबोर्ड भी पता नहीं लग सकता। ओके, सो हैबिचुअल अबोर्ड भी अगर पता लग जाए तो वहां पे रुक जाएंगे आप। हर स्टेज पे अगर आपको पता लग जा रहा है वहीं रुक जाओगे, ठीक है, पर अगर पता नहीं लग रहा तो आगे बढ़ोगे। नेशनैलिटी कहाँ की है? तो इंडियन भी नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी है जनरली बाय बर्थ, बाय सिटीजनशिप, अलग अलग तरह से नेशनैलिटी होती है। अब ये तो दोनों जगह की नेशनैलिटी के लिए, लेट्स से शी इज हैविंग डुअल सिटीजनशिप, दोनों जगह की नेशनैलिटी है, यहाँ पे बाय बर्थ नेशनल है, वहां पे बाय, दोनों के रूल डोमेस्टिक रूल तो अलग अलग हो सकते हैं ना, यहाँ भी नहीं पता लगा। तो इतनी स्टेजेस पार कर ली और पता नहीं लगा, तो इनके लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, दोनों कंट्रीज साथ में बैठेगी, दोनों कंट्रीज की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, खुद नहीं, इनके असेसिंग ऑफिसर नहीं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो दोनों देशों की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज साथ में बैठेंगी। ओके, एंड ये दोनों देशों की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जब साथ में बैठेंगी तो डिसाइड करेंगी कि वो कहाँ की रेसिडेंट है और उसके बाद ट्रीटी बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है पीसी के केस में एक्चुअली ये हुआ हो, या हो सकता है हैबिचुअली अबोर्ड इंडिया में ज्यादा रहती है, पता नहीं, गॉड ओनली नोस। ओके, सो दैट्स एन एग्जांपल। रिमेंबर प्रियंका चोपड़ा, ओके, व्हेनेवर यू वांट टू रिमेंबर दिस थिंग, परमानेंट होम भी दोनों जगह हैं, सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट भी दोनों जगह हैं, हैबिचुअल अबोर्ड भी दोनों है, नेशनल भी दोनों है, तो भैया म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लो आप, इतने इंपॉर्टेंट पर्सन। ओके, this is important by determining of tax residence. कंपनीज के केस में क्या होगा? ओके, कंपनीज के केस में क्या होगा? एंड व्हाई आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ टिकटॉक, क्योंकि मुझे लगता है कि टिकटॉक का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तो इंडिया के अंदर ही है। पूरी टिकटॉक इंडिया चला रही है, जिस दिन इंडियंस बंद कर देंगे टिकटॉक चलाना, शायद टिकटॉक ही बंद हो जाए। ओके, तो कंपनीज के केस में कैसे हो सकता है? एक कंपनी तो बोलती है कि प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चाइना बोलता है कि उसके लॉ में कि जो भी मेरे यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है वो मेरा रेसिडेंट है। और इंडिया क्या बोलती है? इंडिया बोलती है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इनकॉर्पोरेशन तो है ही इंडिया के टैक्स लॉ में, आप सेक्शन 6 में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेशन तो है ही इंपॉर्टेंट। ओके, बट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है ना, वो भी यहाँ पे हो सकता है। और सारा, क्योंकि जोकिंगली सारा टिकटॉक इंडिया ही चला रहा है, ओके, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी इंडिया में। अब भाई कहाँ का रेसिडेंट बनाइए कंट्री, टिकटॉक कंपनी है कहाँ की रेसिडेंट? तो बोलो भाई
ये टाइप ब्रेकर केस बाय केस होगा ऑन आर्टिकल 25 म्यूचुअल अग्रीमेंट। इसमें कुछ और नहीं, हैबिचुअल अबॉर्ड वगैरह तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कुछ पता ही नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आप दोनों मिलके डिसाइड कर लेंगे, एंड दोनों के कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज विल रिलाई और डिसाइड करके बता देंगे टिकटॉक को, ये एप्लीकेशन लगाएंगे म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसेस में, वो 1-2 साल लेंगे और बता देंगे कि आप कहाँ के हो भाई, ठीक है, आप कौन सी जगह के हो, ये साफ साफ आपको बता दिया जाएगा। सो आर्टिकल 4 रेसिडेंट, समझ लो सिंपल चीज है। इंडिविजुअल के लिए क्या है, परमानेंट होम। अगर दोनों जगह परमानेंट होम है तो पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन जहां पे क्लोज है, सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। दोनों जगह होम है, दोनों जगह होम ही नहीं है और सेंट्रल ऑफ वाइटल इंटरेस्ट नहीं पता लग रहा है, हैबिचुअल अबॉर्ड, फिर नेशनल और म्यूचुअल अग्रीमेंट, ठीक है। और अदर देन इंडिविजुअल हो तो भैया दोनों, जहां पे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो इस ट्रीटी में लिख रखा है जहां पे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है। इस ट्रीटी में ये नहीं लिख रखा कि दोनों कॉम्पिटेंट लोग मिल जाएंगे, हो सकता है आगे लिखा हुआ हो, बट अगेन ट्रीटीज आर डिफरेंट, ये चीज आप ध्यान रखना। सो वी विल टुवर्ड्स द एंड, द लास्ट केस है, ये नवंबर 18 की केस स्टडी है, ये बता देता हूँ। एक मोहम्मद सुलेमान है जो कि रेसिडेंट मोर देन 182 डेज इंडिया के अंदर था और रेसिडेंट टू सिटीजनशिप था कंट्री एक्स के अंदर। तो DTAA में वो देखने गए, तो यहाँ पे उसका रेसिडेंशियल हाउस है, यहाँ कोई बिजनेस इनकम नहीं है, यहाँ पे रेंटल इनकम है। यहाँ भी रेसिडेंशियल हाउस है, यहाँ पे बिजनेस इनकम है और यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है, बिटवीन दैट कंट्री कि परमानेंट होम जहाँ पे अवेलेबल होगा, पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, रेसिडेंट मोर देन 182 डेज की वजह से यहाँ भी हो गया, रेसिडेंट थ्रू सिटीजनशिप यहाँ भी हो गया, ठीक है। ये रेसिडेंशियल हाउस है उसका, यहाँ पे कोई बिजनेस इनकम नहीं है, यहाँ पे रेंटल इनकम है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ओके, वेदर द बिजनेस इनकम अराइजिंग इन फॉरेन कंट्री एक्स, यहाँ पे जो बिजनेस इनकम फॉरेन कंट्री एक्स में आ रही है, एंड STCG, ओके, कैन बी टैक्स इन इंडिया इन द हैंड ऑफ मोहम्मद सुलेमान ड्यूरिंग 1890, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमाइनिंग करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। परमानेंट हाउस है दोनों कंट्री में, ठीक है, पर सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट कहाँ है, कंट्री एक्स में, क्योंकि उसका बिजनेस कहाँ पर है, रबड़ एस्टेट का, कंट्री एक्स में, तो वो कंट्री एक्स का रेसिडेंट बन गया। एक बार वो कंट्री एक्स का रेसिडेंट बन गया, वो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, तो जो उसकी ये फॉरेन की इनकम है, बिजनेस इनकम और STCG, ये तो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगी ना, क्योंकि रेसिडेंट तो है ही नहीं वो। और रेसिडेंट की कौन सी इनकम, रेसिडेंट की बिजनेस इनकम और ये जो STCG इनकम है, ये बाहरी टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, सॉरी रेसिडेंट नहीं, वो नॉन रेसिडेंट है इंडिया के अंदर, तो उसकी जो बिजनेस इनकम है और जो STCG है वो तो बाहरी टैक्सेबल होगी। Therefore, he shall be deemed to be resident of country X. Business income as well as STCG will be taxable in country X. और उसको ये TRC लेना पड़ेगा, राशन कार्ड दिखा दो भैया कि आपको वहां पे टैक्स पे करते हो ना, तभी आप DTAA का बेनिफिट ले पाओगे, नहीं तो सारी इंडियन इनकम है टैक्सेबल, क्योंकि आप बाय वर्च्यू ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट आप इंडियन रेसिडेंट थे। तो अगर TRC नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो आप DTAA का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर TRC है तो आप DTAA का बेनिफिट ले पाओगे, नहीं तो पूरी की पूरी ये इनकम है, ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ही वाज टैक्सेबल इन इंडिया, ओके। उसके बाद जो रेंटल इनकम है 6 लाख की, वो तो इंडिया इनकम ही है ना, वो टैक्सेबल हो जाएगी सोर्स के अंदर, क्योंकि वो सोर्स के अंदर ही है, आफ्टर 30% डिडक्शन एज पर सेक्शन 24। तो आफ्टर 30% डिडक्शन एज पर सेक्शन 24 वो उसको भी बेनिफिट मिलेगा, ये इंडिया के अंदर रेंटल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज ये तो इंडियन सोर्स इनकम ही है, ये तो सोर्स, ये तो सोर्स पे टैक्स तो बाहर वाले को देना ही पड़ता है ना, यहाँ पे ये टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। लास्ट टू क्वेश्चंस एंड देन वी एंड, ओके। ये अगेन नवंबर 19 के स्टडी में वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कौन से सीक्वेंस में लगाओगे आप ABCD, ओके, बिकॉज ये वीडियो बाद में अपलोड होगा, तो आई विल गिव यू अनदर 10 सेकंड्स टू जस्ट थिंक, सो दैट आप सोच सकते हैं और उस समय आंसर दे सकते हैं कि कौन से सीक्वेंस में चलेगा, हैबिचुअल अबॉर्ड, परमानेंट होम, सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। जरा सोचिए, दैट्स द आंसर, यू मस्ट हैव नोन इट। परमानेंट होम पहले देखेंगे, फिर सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट, फिर हैबिचुअल अबॉर्ड और फिर नेशनैलिटी। रिमेंबर प्रियंका चोपड़ा। ये केस स्टडी नवंबर 18 की 3C। अगर एक जना
the residential status of an individual who is treated as a resident in India as well in foreign country with which India has entered double taxation avoidance agreement. Okay, and it's to be determined as per article. The rule apply to just the individual closer personal economic relation. जहाँ पे personal economic relation है, उसको क्या rule बोलते हैं? Tax benefit, vital interest, OECD model या ना होता होगा? Personal economic relation को क्या rule बोलते हैं? So that's the rule of examination of vital interest. तो आप पहले परमानेंट होम देखेंगे, फिर सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट देखेंगे, फिर हैबिचुअल अबोर्ड देखेंगे और फिर नेशनैलिटी देखेंगे. So that is where I want to stop now. Unfortunately, we were not able to take this live, but I would request ICI to put it as is over here so that people can take benefit of this while coming to the next session. What I will also tweak a little bit that कुछ एक आध पोर्शन छोटा मोटा आई विल रिपीट अगेन सो दैट जिसने नई स्टार्ट सुबह का सेशन देखा है वो भी इस भाषा को समझ पाए, वो भी इन चीजों को समझ पाए. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेशन. ओके, एंड you know, thank you so much Sumant and Tanya for coordinating this, and you know, that's it over from my side. You can take it over now. Wow, that was amazing. Thank you, sir, for giving us such a beautiful conceptual understanding on this topic. Really, I have never got such a clarity on international taxation in such a way. Examples used by you will definitely make easy for all of us to recall and relate the concepts. I hope now students will be feeling quite confident to deal with this. Now I would request Ms. Tanya to give a vote of thanks. You wake up, you have to be whoever you want. The only thing stopping you is you. So, I'm Tanya Leela on behalf of CIRC and on behalf of the whole CA fraternity, express my hearty gratitude to respected CA Naman Shriman sir for gracing us with your wonderful words. It was indeed an exciting session to attend. And to each one of you who has been a part of that Day 12 seminar series. And I would like to conclude by thanking the students for the display of learning. Thanks to the student conveners and volunteers for the midnight oil to make this series of happen with a memorable participation. In the end, I would like to say a few lines. Education has a value that cannot be quantified. If you ever done the journey, look within, outside. Be your heart, love, answers to all questions of life. No one else but your thoughts will keep you upward in stride. Working hard, focus on your long-term goal. It's not the excuses, but the fire of the soul. So, I will sign off. See you in the evening with another unselling session, and stay safe. Okay, see you in the evening. Thank you. Thank you, sir. Thank you.